as few of our star batters are not in that great form. The likes of Shubman Gill, Shreyas Iyer, and then they have so far failed to get going. So that the onus will be on youngsters. Someone like Rajat Patidar or a Sarfaraz Khan, whoever gets in. So a huge game coming up. And on that note, England will have its tails up. Means obviously the fact that they have won that Test match in Hyderabad means or obviously India had an upper hand means for most of the game. And then suddenly from that. After posting 436, then you end up losing means obviously uh, I for once would love to see a positive mindset, obviously, and this Indian team has done it over the years. They have done it time and again when the chips are down. For instance, beat the last in the series in 2021 when they lost the Chennai Test match and they bounced back and went on to win the Test series 3-1. So let's keep fingers crossed and hope that they put up a great performance in the Vizag Test. Also, I would like to know your opinion on the pieces which are appearing that, baseball is saving Test cricket. What is your perspective on that? Like, do you think it is saving Test cricket, or it's just a narrative being made by the visiting side? It's just a narrative being made by the English fans. Means it's not the English cricketers. It has got nothing to do with McCullum or Ben Stokes. It is a term that has been created by the English fans and the Barmy army. But then obviously yes, it is a very positive approach, and that is something refreshing to see in Test match cricket. But then and obviously. In India do have decent batters who can get going. If they can get going, means they can also dictate terms. So a lot of talk has gone from leading into the series about baseball, but then obviously now more so because in England are 1-0 ahead. But then I would see that if India bounce back in, then there will be talks that come on, whether baseball will sustain or stuff like that. But then it's a term basically created by the English fans rather than the English cricketers. That's a interesting take. I'll just go across to Rahul very quickly. And what do you think should be our team combination for the Vizag Test? Sorry, I was on mute. I guess, yeah, that's a tough one. Throwing me under the bus straight away with team combinations. It's but not no, the team bus, so I think we should. I think I always look at things in perspective. Now, we've got a couple of injuries which are going to force some changes. But what I also like to think about is, had there been no injuries, would we have got in with the same 11 that we went in the first test? And that kind of tells you the psyche of what's happening in the team and the mindset that we are at. Now, obviously, we've got a first injury with arguably the best all-rounder in world cricket today, which is Ravindra Jadeja. Hard to replace a cricketer like that. So we've got to find a replacement for him, and we've got to find a replacement for KL Rahul. There's been a lot of chat, and I've read about it, that India might consider going in with 4 spinners into this test as well. I can remember the good old days where we used to have batters who used to bowl in the Indian side, and Sourabh Da with his right arm fast, I'll just call him that, used to open the bowling for us from one side, and we used to have spinners bowling from everywhere. Yeah, and Srinath used to be the other opening bowler that used to play in Test cricket, and then we used to have a whole plethora of spinners playing. But yeah, I don't see to replace like for like. If we were to replace Jadeja like for like, then we are looking at possibly a Washington Sundar coming in there, because of the fact that he gives you that stability with the bat and he gives you the stability with the ball as well. The second aspect of it is that if you're looking at a like for a left arm spinner, then you're looking at there's only one option there, as in a finger spinner, is your Saurabh Kumar coming in like for Jadeja. The third option is that if you want a bit of variety in your attack, which you kind of felt that we lacked, because we were with 2 left arm spinners
in Hyderabad, then you've got the option of Kuldeep Yadav. So it'll be interesting to see which way we go. I have a funny feeling that we'll go with Washington Sundar, just because of the fact that he does give you that security lower down the order, and we've seen how crucial lower order runs have been. I mean, you had a press conference where Rohit Sharma also said that I don't know if that's what he meant, but that's what came out in the media, was the fact that he was hoping that the game would go into day 5 when there was Bumrah and Siraj at the crease. So let's not get it wrong. England played out of their skins. They won an important toss and they played absolutely brilliantly. But they beat India in the end, after everything, by a small margin of 28 runs. So it does tell you that every single run that you can get from any batter is going to be very crucial in this series as well. So Sundar gives you that option. The batting to replace KL Rahul. Um, uh, Patidar was bought into the side as a replacement for Virat Kohli. So he technically is the first cab of the rank. But then you got Sarfraz Ahmed now who comes in as well. Who do you pick between the two? Um, I remember a series in England where Karun Nair was taken and then Hanuma Vihari was played ahead of him. So which way will we go again is anybody's guess, but I guess both of them are deserving if anybody gets picked. If both get picked and I see a combination where both could play also, then that could also happen. So yeah, it's going to be interesting. Don't think I have an absolute perfect answer for what the 11 will be like, because there's a lot of ifs and buts going around. So, like when there are ifs and buts, which are pots and pans, I think I'll go to Nikhil Bhai because he would have some 11 ready. So I think you can tell your possible 11 or combination, Nikhil, and you can bring some clarity. You have to Nikhil, your unmute mic is yourself. muted. Yeah. Nikhil bhai, you are on mute. No, we are not able to hear you. हटा दो ये mic का problem. हटा दो. Is it audible now? Yes. Now. Yeah, now it's audible. Wow. So maybe some god is muting me also. I don't know why. But I think the point is, it just illustrates how difficult the situation has been. Not with the mic, but with the combinations and the pressure that is there on Indian cricket. Because as Debasis also pointed out and Rahul also said rightly, it's a place where you have not been before. So whatever you do, you have to be very sure of that tactics in terms of who you are getting into. I personally feel both of them should play in Rajat Patidar and Sarfaraz Khan. The sole logic there is they're both coming off runs. And at this point of time, with Shreyas and Gill slightly looking a bit sedate and cautious, you want that freedom to come in without any baggage, because both Rajat and Sarfaraz are coming without any baggage and they both know this is probably once in a lifetime kind of opportunity. Breaking into this Indian side is never easy, even more so at home. So I, for some reason, feel that they could slot both of them in. The only reason why I feel that is you already have an off spinner in Ashwin, and if you have Ashwin, I don't think you need Sundar. So while you can get the option of Sundar and say that yes, he could hit Tom Hartley and Jack Leach, but if Jack Leach is not playing, it's just one left arm spinner, and then you have Soy Bashir, who's most likely to play. So I think that would just really make it kind of the perfect matchup, so to say, for both Rajat and Sarfaraz to play. So that is what I feel in terms of you replace Jadeja with Kuldeep, you replace Rahul with Patidar, and you play Siraj with Sarfaraz Khan. Again, you can replace whoever you want to, but I feel you have enough batting depth now because Akshar Patel is batting at 8 or 9 now. इससे ज़्यादा बैटिंग नहीं चाहिए. You can have Bumrah at 10 and Kuldeep at 11. But that's me, and I won't be surprised if anything happens because till this point of time, we don't know how the Visakhapatnam pitch is going to be. So you assume it's going to turn, but probably from day 2. So if you have to use pacers very, very confidently if at all you pick them. So we'll just quickly go to Sarvesh about regarding the numbers about this wicket. If you have looked into any past numbers, then you can tell us like how this pitch has played and how this venue is for India.
I don't have the exact numbers, but I think based on our history and based on the situation that we have right now, I think it is going to turn. It is just about how much will be the turn and from what point it will start turning, from day one, from day two, and what will be the starting point. So I think that's the only question. And the kind of news that we have been reading in media till now, I think it looks like it will start turning from day one, because England are talking about playing four spinners, and even I've read some news that Kuldeep has been practicing, and so it looks like we will be going with more, maybe three, at least three spinners. So I think it looks like it will be a turner. It's just about when it will start turning. I think it will start turning very soon. I think mostly from day one only. So we are also very lucky to have a man who will be very close to the action. So from past experience, Debashish, do you feel the pitch will turn, or how does it behave, or is there any wind at the ground? I think it's definitely going to turn. Means there are no two ways about it, but it's going to be a quick turner. Means we in Hyderabad we saw it was a slow turner, and the English batters comfortably handled the Indian spinners. But it won't be the case, and obviously there was a lot of drama today at the start of the Indian practice session with Rohit Sharma, Rahul Dravid, Mohammad Siraj, Ravichandran Ashwin, and a bunch of Indian cricketers means inspecting the wicket, and there were BCCI curators Taposh Chatterjee and Ashish Bhomik as well, and Rohit Sharma and Rahul Dravid were seen having a long discussion, and soon after the groundsman was seen watering the wicket, and then the wicket was covered. So. And there was a lot of drama going around, and so and obviously India's biggest advantage is their spinners. Means obviously Tom Hartley may have taken 7 wickets, but at end of the day we have to accept that the likes of Ravichandran and Ashwin is way ahead of our Tom Hartley. He may get you 7 wickets, but it's a one-off thing. I think it won't happen every match. Every match, Tom Hartley will not get away with picking 7 wickets. Let's accept it. Means in India, in Indian conditions, Ravichandran, Ashwin, Kuldeep Yadav, Akshar Patel will just go through the any batting line. I mean, we have seen Akshar Patel what he did against England in the same almost the same England side in 2020-21 when they were one down. Means obviously, so I think it will be a quick turner and a little bit of bounce. And I for once, I to some extent agree to Rahul's views of playing in a Washington Sundar, because he is handy with the bat. Means first he might play as a batter who can bowl first as a batter, because he will invariably give you those runs. Means he's a decent batter. So and then will come his role as a spinner. So and but then if you play, if you go in with a Washington Sundar, then you have to sacrifice one of your batters, or even for that matter you might as well sacrifice one of your pacer, because Mohammad Siraj did not have a great outing in the first match in Hyderabad. So maybe because the Mukesh Kumar did had a long ball in the nets today, but then I doubt it will be three spinners. Means I don't see India going in with four spinners. Means it will be 2-3 combinations, two pacers and three spinners. Maybe Siraj giving in for Mukesh Kumar and Jasprit Bumrah, two seamers and three spinners in Kuldeep, Akshar, and Ravichandran Ashwin. So we have a question from our regular listener Arnab Bhattacharya, who goes on Twitter by @BongGunner. So do you guys see Washi playing in this or any of the upcoming test when Jadeja isn't available? So yeah, quite a fair question. We have two panelists with contrasting views with relation to this test. If anyone wants to come in, Vallabh, what do you think about this question? Yeah, so Washi has been really handy with the bat. So Washi basically gives you that extra advantage which India may have lacked in the previous match, because we got there are some sloppy runouts which happened in the last match, which was unexpected with Jadeja. So actually, it's like to replacement for Jadeja when you look at both batting and bowling perspective. But again, if you are looking at a left arm bowler, as Rahul has specified, that Saurabh Kumar is a like to like replacement.
So was she playing in upcoming test or no? It depends on the management. But as a fan perspective, as my perspective, I would say that he's a like to like replacement for Jadeja, who has been brought in. But I think they'll prefer Kuldeep because they have some batting depth, and Kuldeep can support in the batting lineup and he can hold the wicket. So the other question I had for Saurabh is that there have been no answers to the sweep shots of the English batsmen. So Saurabh, what do you feel? How are they going to counter this sweep? Are they going to sweep on their own, or are they going to use some other strategy? So what I heard, or what I actually, one of the quote I saw from Pope, that reverse sweep is as good as defense against Indian spinners. He has told, and I must say that I felt that he was so lucky to say that, because I remember, uh, if you are a good defending batsman, and it's and you are if you're an attacking batsman, you know how to defend, you are the best in the world, what the greats always says. But when it comes to say that reverse sweep is as good as defense by the Pope, because he was so much lucky in the last match that he didn't get out or through LBW or the edges, I must say that yes, sweep was, I think from the time of Mike getting, we are seeing the sweep against the spinner, and who plays the sweep regularly. I'm talking about the continuously. Who doesn't know being ball from the hand generally? And when you use your leg foot, what does it mean? It means that you are reading the ball properly. So accordingly, you are changing your movements. If you say, if you see last match, even the Pope and other guys, they they actually did few things where they were lucky enough to survive. So I would say yes, it can be in a slow turner. It did work, but as Mama said that the pitch will turn depending upon, Mama can tell us because he is from there. He is from the ground zero. He can let us know that it will gonna to be a slow turner or the fast turner or the bounce. How the bounce will be. If there will be bounce and the better and the little bit pace in turning from last match, I would say India will be more than happy if they will keep sweeping instead of defending. Mama, can you please let us know that if you have seen the pitch? What was noticeable in today's Indian practice session was that all the batters, be it a Shubman Gill, be it a Rohit Sharma, be it a Shreyas Iyer, everyone was seen practicing sweep shot, and Shubman was even practicing reverse sweep. Means obviously, and that was something very noticeable. Means strange, somewhat, because and there were specific instructions, because what Olipop has showed, means obviously in that 196 run innings, means obviously most of his scoring shots, if I'm not wrong, 17 of them of reverse sweep, means obviously a lot of focus was on sweeps and reverse sweeps. In fact, all the batters that I named, be it Shreyas, Yashasvi Jaiswal. In fact, the still pictures that BCCI tweeted a few minutes back, an hour or so back, most of the shots are sweep shots. You see a Yashasvi Jaiswal or a Shreyas Iyer or a Shubman Gill, most of those are sweep shots. And I also clicked the several pictures of the batters practicing sweep shots. So this is something, means, I mean, tit for tat, means obviously England deployed with this ploy of playing sweep shots and reverse sweeps. Now it's India's turn to give it back. Means that obviously, and to unsettle. Means the sweep shots is the perfect thing to unsettle the spinners. Obviously, Jack Crawley was asked in the press conference today. Means how do you, means is reverse sweep is the best option? He invariably says yes, absolutely. Reverse sweep is the best attacking shots that you can have, because and he also did mention that his height has also somewhat helped in playing reverse sweep, because he that height he can counter the ball, means before the turn. So I think we will get to see more sweep shots being played by batters from both sides in this test match. So a little personal question on the same note.
like how many clicks of the camera or how many exposures does it take to get that sweep, the shot perfectly? It can be any shot, like when you photograph batsmen. Yeah, obviously that is what a photographer thrives for. Means obviously catching the best moment. Means nothing is more enjoyable for a photographer than to catch an action picture. Means when it means, and that gives you that simple joy. Means obviously when you like capture the emotion. Means obviously walking up and down, or taking a 5 wicket, raising the hand, celebration, these are all normal. But an action picture, a stump rattling, means a fast bowler bowling the batter out, and his stumps rattle, and those are the pictures that a photographer thrives for. Means they means you can actually see. I mean, obviously, for me, I took a picture out in the last match of Ollie Pope. I think he was bowled. Means, and that to me was my best click in the last Test match. Means I would look forward to having such clicks, and maybe I can share a few with you guys as well. That's nice. And do you get to choose Manju your position on the boundary, like, or with experience it changes, or like do the new guys have to adjust like that? No, Manju, just I wanted Just to out of say, curiosity. it's basically the agency guys, they normally get preference. Like I'm talking about Okay. AFP, Reuters, PTI. The agency photographers, they get a preference to they get a better position, but not. But invariably, I managed to get a better position in most of the venues, because all of them knows me very well. So. The main thing is to you have to position yourself in a proper way. Means you cannot miss out the angles when you take a picture. So that was an interesting bite on photography by Debasis sir. Thank you for that. And we are now joined by Syed, and I'd like to welcome him with a very fresh question about the fielding standards between both the sides. So far we have seen only one test. So what do you feel with regards to fielding? Who is ahead, and how what difference could it make? Thanks a lot. Thanks to all our friends over here. Yeah, if you ask about fielding difference between India and England, so far I can't say there is difference. It is drastic. It is drastic difference between those two teams. Frankly, I am speaking about. You can say, yeah. I think Pope was dropped on 110, and then he got another lifeline around 150 or 160. Forget about 110. If he got out on 150 or 160, again, there will be some 50 or 60 more or less runs to be chased. तो अगर फील्डिंग की अगर बात करोगे आप, तो 100% कोई डिफरेंस ही नहीं था. मैं यही कहूंगा कि वो डिफरेंस ही नहीं था. इंग्लैंड ने जिस तरीके से खेला वहां पर फार बेटर, इंग्लैंड वाज फार बेटर साइड फ्रॉम इंडिया. We had a few drop catches also at a wrong time. So, yes. I have a question for Syed. So Syed Yeah, bhai, Saurabh. yes, ESPN के लाइव कवरेज से बाहर होके कबड्डी देखते हुए इंडिया इंग्लैंड के मैच के प्रीव्यू के बारे में बात करना, वो ट्रांजिशन आपको कैसा लगा? बिल्कुल. एग्जैक्टली 10 मिनट पहले मैं पहुंचा हूँ, कबड्डी करता हुआ यहाँ पे, और इंडिया इंग्लैंड की बात हो रही है. तो वो ट्रांजिशन तो मैं नहीं कहूंगा सौरभ, बिकॉज कबड्डी की अगर बात करें तो ये होम लेग था पटना का. पटना में मैच हो रहा था. मेरा होम टाउन है पटना. मैं इत्तेफाक से भी आया हुआ हूँ. वैसे तो मुंबई बेस्ड हूँ, बट आया हुआ हूँ पटना. तो मैंने सोचा यार इसको मिस नहीं करते हैं, वो हर दिन जाते हैं, तो मैं जा रहा था. रही बात इंडिया इंग्लैंड के प्रीव्यू की, तो जाहिर तौर पर सबकी निगाहें, और मेरा तो ये कंसर्न है कि भाई आप पे केएल राहुल और रविंद्र जाडेजा की जगह किसको लाएंगे. मुझे जहां तक लगता है सौरभ, जो लगातार बातें हो रही, हो सकता है आप लोगों ने भी किया हो, मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं बस हमारे पास एक डेटा है, अगर आप सुनना चाहेंगे. हाँ सौरभ, मैंने बोला हमारे पास एक डेटा है. इफ यू वांट, सर्वेश का एक डेटा है, मतलब ही जस्ट गिवन द सरफराज एंड
सर्वेश, कैन यू प्लीज शो दैट? हाँ, ये एक छोटा सा हम लोगों ने बनाया हुआ है फर्स्ट क्लास स्टैट्स, फर्स्ट क्लास है। एक तो बंदा आ ही रहा है, तो आप और मामा मिलके ये बताइए कि एग्जैक्टली इन दोनों में से किसका आना मतलब आप लोग को लगता है कि सही है और क्यों होना चाहिए। तो सैयद भाई के बाद मामा भी अगर बोले तो इट बेटर। बिल्कुल सौरभ, देखो मैं तो कहूंगा कि आइदर और की बात ही नहीं है। अगर मेरे हाथ में अगर सिलेक्टर साइड दे दी जाए तो मैं इन दोनों का कल डेब्यू कराऊंगा। मैं सरफराज को भी अपनी टीम में रखूंगा और मैं साथ ही साथ रजत पाटीदार को भी अपनी टीम में रखूंगा। दोनों का डेब्यू कराऊंगा। वो इसलिए कि ठीक है, आप ये सोचेंगे कि क्या फिर बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक हो जाएगी। हमने देखा था पिछले मैच में भी कि जो फिफ्थ बॉलर था वो अंडर बोल्ड था। सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि अगर आप इंग्लैंड को भी आप देखोगे तो फिफ्थ बॉलर उनका अंडर बोल्ड था। इनफैक्ट वहां पर जो रूट ने 29 ओवर पहले इनिंग्स में 29 ओवर बॉलिंग की, दूसरे इनिंग्स में भी उन्होंने 15-17 ओवर बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर आप देखो तो इंडिया को दोनों बैटर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप ये भी देखिए कि एक जो प्लेयर नहीं है, एक जो खिलाड़ी नहीं है वहां पर, वो रविंद्र जाडेजा है। और रविंद्र जाडेजा का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे खास तौर से इंडिया के अंदर में पिछले 4-5 सालों में, तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे बैटर ही खेलते हैं। कई बार हमने उनको नंबर 5 पर भी आके बैटिंग करते हुए देखा है, नंबर 4 पर भी जाडेजा को कभी ट्राई किया गया, तो जाडेजा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप वहां पर ऐसे बैटर जा सकते हो। आप रजत पाटीदार सरफराज दोनों के साथ जाओ और बॉलिंग में कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है सिराज की जगह। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 3 स्पिनर ही चाहिए, हर हाल में यहाँ पर 3 स्पिनर हमको खिलाना है, तो मैं कहूंगा कि आप फिर मोहम्मद सिराज को आप रेस्ट दो और उनकी जगह कुलदीप यादव को लेके आओ। उससे ये होगा कि ऐसे भी सिराज से आपने कितनी बॉलिंग कराई पूरे मैच में, और इस पिच के ऊपर में जैसी वो पिच अभी बन रही है, और हमें उम्मीद है कि विशाखापट्टनम की भी पिच वैसे ही रहेगी। हो सकता है कि हम लोग शायद पहले दिन से, मार्क कीजिएगा मेरी बात, शायद पहले दिन से वो रैंक टर्नर दिख जाए, तो कोई हैरानी की भी बात नहीं होगी। तो उस हिसाब से मेरी टीम में मैं दोनों के साथ जाऊंगा। मैं सरफराज के साथ भी जाऊंगा, रजत पाटीदार के साथ भी जाऊंगा, और कुलदीप यादव को लाऊंगा सिराज की जगह। ये हमारे लिए खुशकिस्मती तो की बात एक है कि इसका हमारे एक फॉलोअप सवाल ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कोई पिच है भारत में जहां 4 स्पिनर खेलने का सेंस बनता है? क्योंकि ये डिबेट चलते रहता है हमेशा कि 1 स्पिनर इज अंडर बोल्ड। तो ऐसा कोई विकेट आपके नजर में, जहन में कोई होगा तो? मतलब चार स्पिनर का मतलब आप जसप्रीत बुमराह को भी हटाने की बात कर रहे हो? नहीं, मतलब अश्विन, 1 पेसर एंड 4 स्पिनर्स। 1 पेसर एंड 4 स्पिनर, डिफिकल्ट है मेरे नजर में। मुझे उम्मीद कम लगती है कि शायद ऐसा करेंगे, क्योंकि हमेशा एक बैटिंग को भी इंडिया तरजीह देगा। वो देखेगा कि आपके बैटर कौन है। अभी अगर आप देखें तो आप किसको लाएंगे? या तो वाशिंगटन सुंदर को लाएंगे जो जिन्हें आपने स्क्वाड में रखा है। बट अगेन वाशिंगटन सुंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो ही इज एन ऑलराउंडर बट मोर ऑफ ए बैटिंग काइंड। उनकी बैटिंग बेटर है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि वो चौथा स्पिनर अगर आप रखेंगे, अगर वो 5वें होते तो चलता, 3 स्पिनर होते, 1 पेसर होते, और अगर 5th बॉलिंग ऑप्शन वॉशिंगटन सुंदर होते तो वो चलता। लेकिन 4th बॉलिंग ऑप्शन वॉशिंगटन सुंदर हो, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है कि उधर नहीं जाएगी टीम इंडिया। तो इस लिहाज से उसके लिए रुकना पड़ेगा। और रही बात पिच की, कौन ऐसी पिच हो सकती है, तो भाई ये तो पिच क्यूरेटर के हाथ में है, वो किसी भी पिच को कैसे भी बना सकते हैं। उसमें तो वो उनको ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, 3 से 4 घंटे चाहिए या 1 दिन चाहिए, 1 दिन में पिच बदल जाती है। हाँ, नहीं, तो मतलब मेरा जो कहना था कि जो दिल्ली 2015 या कानपुर 2008 जैसी जो पिच बनानी हो, तो मतलब क्या करते? मतलब पानी कम छोड़ते हैं या मतलब क्या है आपके देखिए, आपके एक तो थोड़े एक थॉट्स? तो एक बिल्कुल, एक तो इस सीजन में इस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में अगर आप सोचोगे कि वैसी पिच बनाए जो पहले, हालांकि अब मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि फिरोज शाह कोटला की पिच भी अब बदल गई, अब वैसी वाली नहीं है जो हम लोग देखते थे प्री 2017 और 18। उससे पहले जो पिच थी वैसी पिच अब रह नहीं गई है फिरोज शाह कोटला की भी। और जहां तक सवाल है कि पिच इतनी सूखेगी कैसे और कैसे टूटेगी, तो उसके लिए इस सीजन में थोड़ा मुश्किल है नॉर्थ इंडिया में खास तौर से। अगर मुकाबले होंगे रांची में, अगर मुकाबले होंगे धर्मशाला में, जो आने वाले मैचेस होने हैं वहां पे, तो वहां पर आप चाहेंगे कि बिल्कुल वैसी टूटी हुई पिच बनाए। राजकोट में एक मुकाबला होना है, तो उन सब जगहों पर मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ, विशाखापट्टनम, क्योंकि साउथ में वैसी ठंड नहीं पड़ती है, साउथ में आप विशाखापट्टनम में वैसी पिच के बारे में सोच सकते हैं।
वहां पर धूप भी निकल रही है, और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो विशाखापट्टनम में आपको ऐसी पिच मिली है। आप चाहे ओडीआई देखें या टेस्ट मैचेस देखें, विशाखापट्टनम में कमोबेश ऐसा हुआ है कि स्पिनर्स को मदद मिली है वहां पे। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर विशाखापट्टनम में डे वन रैंक टर्नर अगर आप मिल जाए अगर कोई पिच, तो हम हैरान होंगे नहीं। और इंडिया भी उस पोजीशन में है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वो चाहेगा कि कम बैक करें, और कम बैक करें अगर घास रख दिया जाए तो मुश्किल है वहां पर। मुझे लगता है कि पिच वैसा ही मिलेगी, बाल्ड पिच हमको देखने को मिलेगी विशाखापट्टनम में। तो इसी संदर्भ में मैं देबाशीष दा से सवाल करूंगा कि अभी सौरभ कुमार सिलेक्ट हुए ये टेस्ट के लिए, तो आपको इंडिया में लेफ्ट आर्म स्पिन का फ्यूचर कैसे लगता है? मैं आगे सैयद भाई से और निखिल भाई से भी जानना चाहूंगा यही सवाल। अगर आप पेकिंग ऑर्डर बोले तो ऑब्वियसली ही थोड़ा पीछे है, क्योंकि डेफिनेटली पेकिंग ऑर्डर में नंबर वन पे डेफिनेटली के अक्षर और कुलदीप रहेंगे। ऑब्वियसली ही विल ओनली बी देयर थर्ड और फोर्थ इन द लिस्ट इन द पेकिंग ऑर्डर। बट देन बात कही जाए कि सौरभ कुमार का ऑलराउंड एबिलिटी पे, ऑब्वियसली ही इज अ डिसेंट बैटर एज वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। मगर in this situation I don't think India will risk playing in so many inexperienced players. एक तो आप 0-1 से पिछड़ा हुआ हो, तो all you need is to win this test match and level the series. The first thing will be to level the test series before you think of anything else. Means obviously, and this is very going to be very important. So I think the team management will rely on the experienced batters in the likes of Shubman Gill, Shreyas Iyer. हालांकि उनके बैट से रन नहीं बना, they are not in best of the form, but still I would say, going by the practice session today, what I have noticed, I think the entire team is rallying behind Shubman, because जैसे कि रोहित शर्मा हो या राहुल द्रविड़ हो, बार बार देखा गया कि शुभमन गिल के साथ बात करते हुए, शुभमन गिल हैड एन एक्सटेंडेड सेशन टुडे इन द नेट्स, और एक दो बार नहीं, तीन बार उन्होंने बैटिंग किया. ही फेस्ड द स्पिनर्स, he took throw down, but his main focus was to play the sweeps and the reverse sweeps. Means obviously this might be a counter attacking strategy by Shubman, obviously, and he's too good a batter. I mean, I would say obviously his average in recent times in last 11 test matches does not speak for itself, averaging as low as 17. But then he is not a batter to be averaging 17. Means obviously I think he's just one knock away from getting back his form. तो मुझे लगता है कि I still have a gut feeling that the team management will rely on the experienced players, Shubman or Shreyas. Means perhaps one final opportunity I would say. अगर ये मैच भी उन्होंने फ्लॉप किया तो डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में तो विराट कोहली आ ही रहा है. अगर केएल राहुल भी फिट हो गया, क्योंकि दो थर्ड टेस्ट के आगे 10 दिन का गैप है बिफोर द थर्ड टेस्ट इन राजकोट, 10 तो शायद केएल राहुल भी फिट हो जाएगा. यू नेवर नो अबाउट जडेजा, अगर उसका हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया तो शायद उसको और ज्यादा वक्त लगेगा टू बी बैक. बट देन आई थिंक द टीम मैनेजमेंट will definitely give one more opportunity, if not the final opportunity, to both Shreyas and Shubman. और रही बात दोनों प्लेयर्स को खिलाते हुए, आई डोंट सी दोनों इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स, और खास करके ये आपको टेस्ट मैच लेवल करना है, ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज लेवल करना है, तो आई डोंट सी दोनों को एक साथ आप खिला देंगे अगेंस्ट इंग्लैंड. तो इसी नोट पे हम स्पिन का टाइप स्विच करते हुए अपने अभिषेक भाई का स्वागत करते हैं. और अभिषेक से मैं यही जानना चाहूंगा कि रिस्क स्पिनर्स, व्हाई आर दे नॉट वेरी सक्सेसफुल व्हेन दे कम टू इंडिया? और आपको क्या लगता है कंपेयर लाइक कुलदीप, prospects of Kuldeep versus like visiting risk spinner Rehan Ahmed hasn't had a good time. Like he was bowled very less even in the fourth innings. Yeah, first of all, thanks for inviting me, IndvEng. So yeah, it is widely said that the narrative is that the wrist spinners are mostly effective on flatter wickets where they can turn the ball very squarely, but on wickets where there is a bit of turn and there is a slow turn, it becomes easier for the batters to play off the back foot. So hence this narrative. But we've seen Kuldeep Yadav how he's bowled not just in India. If you remember his debut series in Dharmshala, how he made his debut,
And if you look at the other games also where he's played against Bangladesh, also he had a fantastic game. So definitely, there is a difference between Kuldeep Yadav and rest of the wrist spinners in red ball cricket. There is a big daylight there. So the replacement of Jadeja, I think the team management will take a call that no, we don't need that extra batter. We already had batting till Ashwin. So, and Kuldeep Yadav is not at all a mug with the bat. He also has an international 50 with the bat, and Pretty also has a very good solid defense. So, I think the team management will opt for Kuldeep Yadav, and I also don't think that the pitch would be a rank turner. I hope that, because if you look at the last two games played in Visakhapatnam, both are brilliant pitches. You had high first inning score, you had high second inning score, and you had the typical second innings finish in both the games. And especially if there is a wicket, like if the traditional Visakhapatnam wicket, or generally even in the Ranji Trophy game, which happened recently between Andhra and Bengal, recorded, Bengal scored 409 and Andhra scored 439. And since Ranji Trophy is only played for 4 days, we did not get a result there. But if there was a 5-day game, definitely I think these type of if the team management didn't put any pressure on the curator and just left it to like prepare the proper traditional wicket of Visakhapatnam, then I think we are in for a threat. So I believe Kuldeep Yadav has a very good prospect of coming, knowing where how team management thinks and how they are doing about. I think Kuldeep Yadav might make the cut. And I also think the comparison between Rajat Patidar and Sarfaraz Khan, I think it's a dilemma here. Like Rahul Dravid generally talks about players who made it to the squad, getting picked first. So it's interesting to see what logic they're going to apply, because clearly on first class basis, Sarfaraz beats Patidar by a long way. But I think the position which is KL Rahul at number 5, that number 5 might be tempted towards Sarfaraz Khan, but still interesting. But my heart says Sarfaraz Khan, but somewhere it is saying Patidar. Okay, that's an interesting take. So we've had both sides of the coin. So on that note, we have to let Debashish da go because he has to keep his schedule. But before going, I just want to take a few inputs from you. If you want to give 5 tips to any budding photographer, cricket photographer, or in general, you can just quickly give us, and then we can say good night. That's a tough one. Means obviously it means he has to keep his eyes and ears open. Eyes open means he cannot miss any action. Means at the end of the day, it's the action that people will love to see. Being a photographer on a sports field, you cannot miss any action. That's the bottom line. And obviously, for me, the best photograph of any sporting event is to grab the action opportunity. Be it a bowler, fast bowler bowling out a batter, or a batter comes down the track and hitting a bowler for a six. These are the moments that you enjoy the most. But it has been truly enjoying, guys. This was my first opportunity to interact with you all, guys, and look forward to Saurabh has already messaged me that I would definitely be available whenever I find time. But it has been a hectic series because I will be covering the entire series. So looking forward to coming again. Yes, thank you. Thank you very Thank much. you, Mama. Actually, Thanks a lot. in the off season, I think in the off season, we can definitely, you can show us some of your photographs and we can, it will be like a good 100%, session. 100%, So, yeah. and my colleague at Rave Sports, Rubayan, you all know, means obviously we just love our cricket. Kakasi aste China. Kakasi aste China. By the way, Arnab is saying everyone is having a Debasis da. for you. Arun Thank you very much, Arnav. Thank you very much. Thank you. All right. See you guys. So, See you. Thank you. Yeah. Thank you so Thank much, you. Vashita. Thank you. Thank you. Thank you. So now we'll come. We have covered all the bases almost, but we just have the most interesting discussion for the last. And Abhishek has touched on it in the last point. So I'll go across to We both have lots of Sarvesh, time and now. then we will. We have time. Yeah. So I'll go across to Sarvesh. He can explain his graphic, and then we'll open the floor to everyone to come in. So no problem. Sure, Manju bhai. Yeah.
Saurabh, you'll have to put the graphic on. Yes. Yeah, can put that. Yeah. So yeah, this is the graph. This is basically on the right hand side. You can see the 5 innings rolling batting average. Matlab basically, we have grouped 5 innings, and as the matches have gone ahead, matlab वो 5 matches का window we keep shifting forward. So like you can see that Akshar Patel ka current 5 innings rolling average is somewhere around 40, which is, I think, after Virat, Akshar is the one who is having the maximum average. Similarly, Shubman Gill का अगर हम देखें तो Shubman Gill uh, even you can see that before the start of this series, because he had one century before the I think against Australia in the last test match. So his numbers were quite up, but now since the last 2 innings he hasn't scored many. So this graph has basically dipped down. So this tells you about the current form and the current phase of that batter. Now we are talking about the current phase. Just look at Shreyas Iyer's graph. It is basically again dipping down, indicating his poor run of form in the recent games. So that's the graph which tells us about the recent form. And on the left hand side, as we all are aware, the numbers are for last 10 innings. And as you can see, the highest run scorers, Jadeja and Virat Kohli, both are not there for us. So since we've seen the graph, मेरा सैयद भाई से वही सवाल है, अभी इससे कोई बैट्समैन उभरे कैसे? ऐसा कोई are there any maneuvers which can help them come out of it? बिल्कुल, और जैसा मैंने पहले कहा था, याद होगा कि रविंद्र जाडेजा की अगर आप बैटिंग देखेंगे खासतौर से इंडिया में, तो वहां पर वो ऐसे बैटर ज्यादा तगड़े नजर आते हैं, और ये दिखा भी रहा है। जो एवरेज आप देखें उनकी 47 के अराउंड एवरेज है। तो बट ऑब्वियस है कि जो दूसरे बैटर हैं वैसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी आप देखें कि कौन चल रहा है। अगर विराट कोहली को आप छोड़ दें जो इस मैच में है ही नहीं, रविंद्र जाडेजा है ही नहीं, इन दोनों को भी आप हटा दें, तो मुझे सरप्राइज इस बात से है कि इसमें रोहित शर्मा का नाम इस फहरिस्त में जो है वो चौथे नंबर पे नजर आ रहा है। 36.6 की उनकी एवरेज है, जबकि उनसे काफी उम्मीदें रहती हैं कि भाई वो आगे से लीड करेंगे, अच्छा खेलेंगे। जिस वक्त वो बैटिंग करते हैं पिच भी उतनी ज्यादा टूटी नहीं रहती है, ओपन करते हैं, गेंद बल्ले पर आती है अच्छे से। तो इन सारी चीजों को लेके थोड़ा सा हैरानी होती है। फिर ले दे के बात वहीं पर आती है कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं, उनका फॉर्म कैसा चल रहा है, पिछले कुछ इनिंग्स में क्या हो रहा है। तो इसलिए उनके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं एग्री करता हूं। कुछ देर पहले सौरभ पूछ रहे थे कि अय्यर को ड्रॉप ही क्यों ना कर दिया जाए। तो मुझे ये तो थोड़ा सा हार्श है कि ड्रॉप होंगे अय्यर कम से कम इस टेस्ट में, क्योंकि इस टेस्ट में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस बैटर नहीं है। राहुल नहीं खेल रहे हैं, कोहली है नहीं, जाडेजा जो एज ए बैटर अच्छा कर रहे थे वो भी इस मैच में नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि गिल और अय्यर दोनों 110% इस मैच में खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए एक्सपीरियंस के नाते। लेकिन हाँ, अगर इस टेस्ट में भी उनका बैट नहीं चलता है, उनके बल्ले से रन्स नहीं आते हैं, और अगले टेस्ट में जैसा देबाशिष दा बोल भी रहे थे कि हो सकता है 10 दिन का गैप है, राहुल की वापसी हो सकती है, तो राहुल भी आ जाए, विराट कोहली भी अवेलेबल हो जाए, तो फिर ज्यादा प्रेशर रहेगा। और क्या पता हमें जो 2 या 1 डेब्यू तो 100% होना ही है किसी का। अगर 2 डेब्यू होता है, यानी अगर सरफराज और पाटीदार दोनों खेल जाते हैं, उनमें से कोई एक अच्छा कर जाता है, तो फिर सौरभ जो आप कह रहे थे कि अय्यर या गिल, तो शायद ये कॉल लेना पड़ जाएगा कि फिर क्या अय्यर या गिल को क्या किया जाए। लेकिन मुझे लगता है यहां पर गिल के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं, फिर आगे बढ़ता हूं, कि गिल को आप ये देखें कि गिल जब ओपन कर रहे थे तो आप वहां पर गिल में एक प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा था भारत को, खासतौर से अब्रोड भी जाकर। ऑस्ट्रेलिया वाली वो हिस्टोरिकल सीरीज भी आप देखें, वहां पर भी गिल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। एक इनिंग्स में उन्होंने 90 भी किए थे। उसके बाद बांग्लादेश में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा गया था, वहां पर सेंचुरी भी उनके बैट से आई टेस्ट मैचेस में। मुझे हैरान कर गया ये फैसला जब मैंने पहली बार ये सुना था कि शुभमन गिल खुद आए और उन्होंने आकर खुद कहा कि मैं ओपन नहीं करूंगा, मैं नंबर 3 पर खेलना चाहता हूं। ये मैं बहुत सरप्राइज हुआ था कि भाई एक ऐसा बैटर जो अच्छे लय में चल रहा है, अच्छे फॉर्म में चल रहा है, वहां पर वो रन बना रहा है, लेकिन वो खुद चाहता है कि नंबर 3 पर खेले। या तो जैसा अक्सर हम देखते हैं कि बोला कुछ जाता है और मीडिया में कुछ बात सामने आती, या तो वो था कि कुछ उन पर एडेड प्रेशर भी था कि नहीं 3 पर ही खेलना है, या फिर आपकी जगह वहां पर यशस्वी अच्छा कर रहे हैं। अगर वैसा था तो कोई हैरानी की बात उसमें भी नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी ये थी कि वो खुद नंबर 3 पर क्यों आए।
और जब से वो नंबर 3 पर आकर खेल रहे हैं, अगर वेस्ट इंडीज स्टोर को आप छोड़ दें जहां पर 50 प्लस का स्कोर दिखा था नंबर 3 पर शुभमन गिल के बैट से, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ खास नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर देख रहे थे तो क्या चेतेश्वर पुजारा को वो रिप्लेस कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए था। क्या चेतेश्वर पुजारा को आप सीधे बाहर आपको कर देना सिर्फ ये कहकर कि नहीं अब हो गया बहुत चेतेश्वर पुजारा का, वो थोड़ा धीमा खेलते हैं, यानी टेस्ट में कोई बैटर टेस्ट की तरह खेल रहा है तो आप उसको बाहर कर दे रहे हैं, आप उसकी जगह नहीं बना रहे। टेस्ट में टेस्ट की तरह खेल रहा है तो वो टीम में नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो खेल रहा है। तो कुछ जो चीजें हैं ना, मुझे मैं सीधे सीधे सारे बैटर्स के ऊपर मैं इल्जाम नहीं डालूंगा कि भाई उनका फॉर्म ऐसा क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मैनेजमेंट लेवल पर भी शायद अभी भी वो जो ट्रांजिशन का जो पीरियड है वो जबरदस्ती बनाया जा रहा है। अभी चेतेश्वर पुजारा ऐसे थे जो आराम से कम 1-2 साल खेल सकते थे। आप जाकर काउंटी क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं, अभी अभी डबल सेंचुरी उन्होंने लगाई रणजी ट्रॉफी में भी, उसके बाद भी आप उनको हाँ, और उसके बाद एक अच्छी पारी अभी पालम ग्राउंड में भी वाले गेम में 91 एग्जैक्टली दैट 66 के स्ट्राइक रेट के साथ, बिल्कुल। तो उसके ज्यादा करते हैं ना। तो ये गिल की जो विडंबना है, इसी पे राहुल भाई का एक इंटरेस्टिंग टेक है। तो उनका इन जनरल कहना है कि जो नंबर 3 और ओपनर एक ही है क्योंकि वो एक बॉल में भी नंबर 3 मौजूद हो सकता है। तो उनका एक बार मैं टेक ले लेता हूँ वापस, ताकि सैयद भाई को पता वो सुन सकते हैं। अब मेरा भी एक लेटर सैयद भाई से क्वेश्चन है, आई विल आस्क वंस राहुल। हाँ आप पूछिए। ग्राफिक को देख के तो यही लगता है, बट there's one more thing and I've realized this when I was watching the whole game between England and India. One of the things, even England जब पिछली बार न्यूजीलैंड आया था last year at the beginning for a 2 test match series, what was very visible is that apart from hitting a lot of balls to the fence and hitting boundaries, they also are very good at turning the strike over. And the biggest frustration for a spinner or any bowler for that matter is when the strike is constantly turned over. Now you will say there are two sides of the same coin. ज्यादा बाउंड्रीज मारते हैं इसलिए फिर कप्तान इन आउट फील्ड कराता है, बाउंड्रीज बचाने के लिए, और उसके बाद में ये लोग स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं जिसकी वजह से बॉलर और फ्रस्ट्रेट हो जाता है. One thing that I noticed, and Indian batters traditionally were fantastic users of their feet over the last so many years that we have seen. But the other day in the second innings, it wasn't until the 46th or 47th over that I saw an Indian batter using his feet to a spinner, and which was visible only when Bharat came in and he danced down the wicket and he was trying to hit the spinners. So there are a few ways that you can actually make your life a lot easier as a batter. Start using your feet, start rotating the strike, and wait for there will be a bad ball which comes along. I think the current situation is we are only looking for the boundary ball and we are waiting in our crease hoping jab बुरा बॉल आएगा तो मारूंगा. But run scoring opportunities are not just boundaries. You have your singles, you have your doubles, and our calling between the wickets in this test match was horrendous. We have not spoken about that very important factor. Forget about the fact that they got run out, but even there were so many calls when you are sitting there, you're like, what is this guy doing? ये क्यों भाग रहा है? यहाँ पे तो रन है ही नहीं. अरे यहाँ पे definitely run था लेकिन भागा नहीं. So when you're watching a game, you're constantly feeling that it's not right. And that is where I think the opportunity lies for these batters is अगर वो ग्राफ आपको ऊपर लेके जाना है, focus on your singles, focus on using your feet, sweep shot. एक और 2 दिन practice करके आप you cannot become good at it. It is years and years of practice that you need to be a perfectionist at that. And these guys have all grown up playing the sweep and the reverse sweep in England because of the kind of cricket that they're playing over there. So I don't think we need to go matching them tit for tat or sweep for sweep. Focus on your strengths, pick up singles, use your feet, and we should be fine. Look, the initial shock was there. कि how did we lose? हम घर पे कैसे आ रहे? That was the initial shock. Then was the anger. कि come on यार, घर पे आके हमको हरा के गए यार, ये क्या है? What nonsense this is. Then the third thing, when you put your analysis hat on and you think about it for a while, you think, लेकिन यार हम भी तो बाहर जाके लोगों को टेस्ट मैचेस में हराते हैं. ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज हमने जीते हैं, हाल ही में साउथ अफ्रीका में हमने मैच जीता, इंग्लैंड में हमने सीरीज स्क्वायर कर दी थी, वी हैव गॉन एंड वन इन श्रीलंका बिफोर. तो हम भी तो बाहर जाके हम जीतते रहते हैं. हाँ, it hurts more when it happens to you.
But I think we've got the skills and the potential to make a huge comeback. I wouldn't be surprised if at the end of the series the scoreline is 4-1. And with that, I'm going to stop because I've got a train to catch. So it's been fantastic chatting to all of you. But Yeah, got to actually, get it's to very work. kind of you to join No, from no, New Zealand and that too so early. absolutely. Thank you. Great chatting and have a good one. I'll take your leave. Rahul, it's a morning over Thank there, you. right? Or the midnight? Yeah, Yeah, it's yeah, early morning. 7:05 in the morning. My train's at 7:31. Oh, go, And go, my go, Oh, you wife's got to go. rest. Good morning. giving me dirty looks for a long time now. Come on, hurry up. I would not comment on that, but again, yes, go ahead. Okay, okay. Enjoy All that right. trip. Okay, See we you all have guys. Bye, bye, promises bye. to keep. So Catch you yeah, again for bye. the See ya. review. Bye. Bye. अच्छा शेर भाई काफी सारी बातें हुई मेरे राहुल के ऊपर ये क्वेश्चन मतलब मैं सोचता हूँ पर्सनली कि नंबर 3 इन टेस्ट मैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट एन ओपनर when he goes for a bat he knows he's gonna to bat and as an opener when you're coming to number 3 position you're saying okay fine I may be batting at number 2 number 3 मतलब number 2 number 3 ball से I can come to bat however what I think in person number 3 batsman doesn't think that way number 3 batsman knows कि when the openers are there he is mentally ready that I am in the match openers shifted to 3 they don't think like that because they don't have that mindset same condition the 4 5 6 because they realize so आप तो पूजी भाई से इतना बात करते हो या फिर और सारे इतने लोगों से आपने बात किया पूजी भाई ने क्योंकि पूजी भाई हम लोगों के काफी फेवरेट हैं मेरे मंजू भाई के तो काफी ज्यादा फेवरेट हम लोग तो उनके मतलब हर इसको एंजॉय करते हैं इवन 91 पे भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था ट्विटर पे तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था हमने डिस्कस किया था मैं निखिल भाई एंड ऑल वी डिस्कस अ लॉट इंडिया में एट दिस मोमेंट नंबर 3 पोजीशन पे कौन है क्योंकि हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि आप पोजीशन वाइज पे रन नहीं देखते आप हाईएस्ट रन गेटर को उठा के ले आते हो कंडीशन टॉप 4 जो हमारा इंडिया लास्ट खेल रहा था लास्ट टेस्ट में सारे के सारे ओपनर थे अनफॉर्चुनेटली which I personally don't like in test matches. Short formats are a very different ball game, but not the test match. So according to you, even I hope you know Varun Giri, अपने side का ही बंदा है. He's a very cute guy, very young guy. उससे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा बिकॉज वो स्टैट्स और डोमेस्टिक बहुत देखता है. उस बच्चे को भी नहीं पता है कि नंबर 3 पे कौन खेलता है क्योंकि किसी भी रणजी ट्रॉफी मैच के नंबर 3 का कंफर्म पोजीशन है ही नहीं. तो आपके हिसाब से नंबर 3 एट दिस मोमेंट नंबर 3 पोजीशन पे अपार्ट फ्रॉम द चेतेश्वर पुजारा आप हटा दीजिए क्योंकि अभी हम लोग उसमें बात करके भी क्या फायदा होगा बिकॉज़ वी आर नॉट द नेशनल सिलेक्टर्स. तो मूड ऑन. So what do you think नंबर 3 belongs should be in coming years belongs to X who will be that X guy or X person? पैड जल्दी पहने. बहुत बहुत अच्छा सवाल है सौरभ. और आप एक चीज बोल रहे थे मैं बिल्कुल वहां पर आऊंगा. अभी कौन है या कौन नहीं है या कौन हो सकता है. फिलहाल अगर चेतेश्वर पुजारा का आप नाम हटा दें तो कोई नहीं है. बिल्कुल टू बी फ्रैंक मैं शुभमन गिल को नंबर 3 बैटर नहीं मानता हूं. अभी कोई नहीं. पहली चीज. दूसरी चीज अब आपने कहा कि अगर नंबर 3 को ओपन करवा दिया जाए तो वो माइंडसेट अलग हो जाता है कभी कभी. Another Pujara fan. Mukesh. Yep, Mukesh Srivastava. Are we wishing someone like Pujara when it comes Yeah, to so fit against just to complete his Exactly. question, using the feet in a defensive manner. ऐसा लायन को चार्ज किया पैर से मारा लायन बोर हो गया फिर लायन का लाइन एंड लेंथ बिगड़ा तो ऐसे टाइप का जो बंदा नहीं है अपने पास. देखिए दो चीज है. मैं आता वहां पर मैं आ रहा था वहां पर भी जो बात हो रही थी कि नंबर 3 पर कैसा बैटर चाहिए. चलिए इसी सवाल से आगे बढ़ जाते हैं कि जाहिर तौर पर मेरी बात हो रही थी संजय मांजरेकर से पिछले मैच के बाद रिव्यू में. तो उनका यही कहना था कि गिल में नंबर 3 बनने की काबिलियत है या नहीं है वो दूसरी चीज है. क्या वो टेस्ट क्रिकेटर के काबिल है या नहीं सवाल उस पर भी है. वो इसलिए कि अगर आपको महान टेस्ट क्रिकेटर बनना है अच्छा टेस्ट क्रिकेटर बनना है तो आपको स्ट्राइक रोटेट करना भी आना चाहिए. आपका डिफेंस भी वैसा ही स्ट्रांग होना चाहिए. आपका जो फ्रंट फुट पर खेलने का तरीका है स्पिनर को कैसे आप खेलते हैं वो भी मजबूत होना चाहिए. और ये 3 चीज लैक करते हैं शुभमन गिल.
शुभमन गिल का अगर आप बैटिंग देखेंगे वो चौके छक्के बड़े अच्छे मारते हैं, बैकफुट पर जाके पंच बड़ा तगड़ा करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट की जब बात आती है तो वो थोड़े से फंस जाते हैं। स्ट्राइक रोटेट हमने देखा था इस टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी कि शायद 66 67 66 और 67 बॉल्स उन्होंने खेली थी और रन्स बनाए थे 23। तो यानी आप वहां पर फंस रहे थे। उसके अलावा दूसरी इनिंग्स में जब वो आते हैं फ्रंट फुट पर स्पिनर को खेलने के लिए, सीधे सिल्ली पॉइंट पर कैच थमा देते हैं दूसरी बॉल पर, और वो सिल्ली पॉइंट का कैच जो एक क्लासिकल कैच कभी होता था 90s वगैरह में, आजकल हम नहीं देखते हैं सिल्ली पॉइंट पर उस तरीके का कैच पकड़ना। प्लेयर ही नहीं रहता सिली पॉइंट पे। एग्जैक्टली तो वो वहां पर लैग करते हैं। तो मेरी नजर में नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा थे, हैं, और वही अभी रहेंगे या नहीं रहेंगे वो सिलेक्टर मैं नहीं हूं, लेकिन अभी फिलहाल नंबर 3 कोई नहीं है। अब मैं आता हूं जो आप कह रहे थे कि क्या नंबर 3 का जो बैटर है वो दो बॉल अगर जल्दी से गिर गई तो एज एन ओपनर आ जाता है, मतलब नंबर 3 2 बॉल के बाद वो आया, माइंडसेट अलग हो जाता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप पहली बॉल से ही ओपन करते हैं, यानी हो सकता है उस मैच में ओपनर को चोट लग गई हो, या ये भी हो सकता है कि उस मैच में किसी वजह से सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको ही ओपन करना पड़ रहा है, और ऐसा किया है चेतेश्वर पुजारा ने भी किया है अगर आपको ध्यान हो, और ऐसा राहुल द्रविड़ ने भी किया जो पुजारा से पहले नंबर 3 पर खेलते थे, और जब उन्होंने किया था तो आज भी 411 रन की पार्टनरशिप वो है, इंडियन रिकॉर्ड है, वो आज भी कायम पंकज है। रॉय 400 पंकज रॉय सबसे ऊपर है, और उसके बाद सेकंड राहुल द्रविड़ और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग अगेंस्ट पाकिस्तान, वो 411 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 3 पर अगर नंबर 3 को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा। सैयद भाई, डू यू सी श्रेयस अय्यर एज नंबर 3? नो, 100% नो। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो फास्ट बॉलर को अभी भी बहुत अच्छा खेल पाते हैं। इसका सवाल वो 1,00,000 बार, वो 20 बार, 50 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे, वो भड़क जाए जर्नलिस्ट के ऊपर में कि नहीं मैं शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता हूं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। श्रेयस अय्यर की कमजोरी है शॉर्ट बॉल, और वो भी वैसी शॉर्ट बॉल जो तेज आती है। अगर आप ये कहेंगे कि श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा खेला था शॉर्ट बॉल्स को, तो श्रीलंका के पास कोई वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं थे उस टाइम पर वर्ल्ड कप में जब उन्होंने 80 समथिंग रन्स बनाए थे। तो मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर इज नॉट फिट फॉर नंबर 3, एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। वो टीम में भी है या नहीं उस पर भी सवालिया निशान है, जो शायद हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इस मैच में वो खेलेंगे। अब आप आइए कौन हो सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं नए खिलाड़ियों की बात करूं उससे पहले हनुमा विहारी कहां गए भाई? अचानक से हनुमा विहारी कहां खो गए? सिडनी टेस्ट में वो खिलाड़ी अश्विन के साथ खड़ा होके 35-36 ओवर बैटिंग करता है। हिस्टोरिकल सीरीज जो इंडिया ने जीता वो ड्रॉ मैच सिडनी का बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर सिडनी हम हार जाते तो वो फिर वो गाबा जीत के भी कुछ नहीं करते। आपने हनुमा विहारी का वो टेस्ट मैच लास्ट बना दिया। आपने हनुमा विहारी को कहां कहां नहीं यूज किया। छोटे से करियर में उसने ओपन भी किया, उसने नंबर 3 भी खेला, उसने नंबर 5 भी खेला, उसने नंबर 7 भी खेला, 7 भी खेला, विकेट भी लिया, आपने ऑफ स्पिन भी कराई उससे। कहां चले गए हनुमा विहारी? तो अगर नंबर एग्जैक्टली हनुमा विहारी कहां चले गए? फिर वही रीजन, फिर वही सवाल, वही जवाब मिलेगा आपको, वही लॉजिक मिलेगी कि अरे यार हनुमा विहारी है तो अच्छे, बड़ा स्लो खेलते हैं पुजारा की तरह। भाई तो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में टेस्ट की तरह कोई प्लेयर खेलेगा तो आप उसको बाहर बैठा दोगे? ये मुझे हैरान किया कि अगर नंबर 3 कोई हो सकता था, अगर एक तो पहली चीज हम सोच ही नहीं सकते हैं कि पुजारा क्यों नहीं है नंबर 3 पर, लेकिन चलिए अगर पुजारा नहीं है तो चेतेश्वर हनुमा विहारी क्यों नहीं है, वो सवाल। अब यंगस्टर की तरफ आइए, तो सही बात है, कुछ देर पहले शायद वीएच कह रहे थे या राहुल कह रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, कि इस रणजी में कौन ऐसा प्लेयर है जो लगातार नंबर 3 पर खेल रहा है, ये खुद नहीं पता है किसी को। ये फैक्ट है। अगर आप देखेंगे तो सही मायनों में कोई ऐसा रणजी में नहीं है कि लगातार नंबर 3 पर खेलता चला जा रहा हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझे डाउट है भाई, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि अर्नब भाई आपके फैन हो चुके हैं और हमारे साथ एक और बंदे का आया हुआ है। अरे सुनो, तो एक और महापुरुष का आया हुआ है। देखो हमारे महापुरुष का पहचानते हो कि नहीं? By sweeping the fast bowlers too, he played sweep, reverse sweeps and pulls there. I think
भाई दया, ये सारी चीजें हम सब लोग जानते हैं। इनफैक्ट मैं चलो ऑफ द रिकॉर्ड एक बात करता हूँ। मैं पुजारा से आईपीएल के दौरान, हमारी वर्ल्ड कप के दौरान, इसी वर्ल्ड कप के दौरान बात चल रही थी। बहुत शाही बंदा है, बहुत शाही बंदा है और बहुत अच्छा बंदा है, भी एक डाउन टू अर्थ। मैं ऐसा ही बात कर रहा था कि अरे पुजी क्या चल रहा है ये। आप उस वक्त पिछले वाले आईपीएल के दौरान उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था ऑक्शन लिस्ट से भी। तो मेरी बात शुरू हुई थी ऑक्शन लिस्ट को लेकर कि ऑक्शन लिस्ट से आपने अपना नाम वापस ले लिया। तो बोला अरे सैयद भाई क्या करें, आप भी जान रहे हो कि कोई फायदा तो है नहीं, मुझे वहां पर खिलाएंगे है नहीं, मैं चला भी जाऊंगा तो किसी टीम के साथ कंटिन्यू करूंगा, तो मैं अपनी बैटिंग क्यों खराब करूं। पॉइंट नोट कीजिएगा, मैं अपनी बैटिंग क्यों खराब करूं। बैटिंग मैं क्यों जैसा खराब शॉट्स करूं? खेल, मैं इरशाद, जैसा अपना शॉट्स खेल रहा हूं, इरशाद। मैं जिस तरीके से खेल रहा हूं, मैं वहां पर प्रैक्टिस करता हूं अपना। मेरा फोकस इंडिया के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच है। जिस बंदे ने सामने से बोला हो कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच है, उसके लिए वो तैयारी करता है, उसके लिए वो काउंटी क्रिकेट में जाता है, उसके लिए वो ससेक्स में सेंचुरी पर सेंचुरी लगाता रहता है। गोभी देखो, गोभी उसके बावजूद आप उसको यहां नहीं खिलाते हैं कि आप स्लो खेल रहे हैं यार नंबर 3 पर। वो भी मुझे उससे बड़ी हैरानी तब होती है। उससे पहले मैं ये बोल दूं कि आई एम बिग फैन ऑफ राहुल द्रविड़। मैं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा फैन था, ऐसा नहीं है। और लेकिन नहीं उसके बाद भी मुझे हैरानी होती है कि राहुल द्रविड़ खुद जो द बॉल कहे जाते हैं, नंबर 3 पर खेलते थे वो, और पुजारा को नई दीवार कहा जाता था। द्रविड़ पुजारा के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी हैरानी होती है मुझे। मैं सीरियसली मैं हैरान होता हूं। और पुजारा का जब भी नाम आता हो टेस्ट मैच स्क्वाड में नहीं देखता हूं, हैरान हो जाता हूं। मुझे सच में लगा था, मैंने बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही चोट लगी थी, और सॉरी पहले 2 टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली का नाम नहीं आया था, तो मुझे ये लगा था कि पक्का पुजारा टीम में आ जाएंगे उनकी जगह। उसके बाद जब अभी अभी पता चला था कि राहुल को चोट लगी है, तो पहला रिएक्शन मेरा सरफराज से पहले यही था कि शायद पुजारा को अब मौका मिल जाएगा। हैरानी होती है, बस मैं इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, हैरानी होती है। तो इसमें छोटा सा लास्ट सवाल वही है कि क्या ये कमजोरियां दूर हो सकती है गिल, श्रेयस अय्यर की ये स्टेज में, या नामुमकिन है? देखिए नामुमकिन तो कुछ नहीं है ना सौरभ, नामुमकिन जैसा शब्द तो क्रिकेट में होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। नामुमकिन जैसा शब्द अगर क्रिकेट में होता तो राहुल द्रविड़ के नाम 21 बॉल पर 50 नहीं होती। ओडीआई क्रिकेट में राहुल द्रविड़ कभी वनडे में 10,000 रन नहीं बनाते, कभी भी नहीं बनाते। राहुल द्रविड़ को कोई नहीं जानता था वनडे क्रिकेटर के तौर पर, लेकिन उन्होंने 10,000 रन भी बनाए, 21 बॉल पर 50 भी बनाई ओडीआई क्रिकेट में। तो नामुमकिन जैसा शब्द तो क्रिकेट में नहीं है, लेकिन हाँ यही है कि आप उसको कैसे अपने में बदलाव लाएंगे। आपका माइंडसेट क्या है कि आप सही मायनों में नंबर 3 के लिए पूरी तरीके से खुद भी सोचते हैं। क्या शुभमन गिल से ये सवाल करना चाहिए? जैसे स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया देखिए कभी कभी लगता है बड़ी फ्रैंक टीम है। अभी अभी ओपनर की तलाश हो रही थी, स्टीव स्मिथ खुद सामने से आते हैं और कहते हैं कि मैं ओपन करूंगा, और ओपन करने लगे। उसके बाद उनसे पूछा कि आपने रन्स नहीं बनाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप देख लीजिए, लास्ट मैच में मैं नॉट आउट था 91 पे, और अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, एवरेज देखेंगे एज एन ओपनर, तो मेरी एवरेज अब 60 प्लस है एज एन ओपनर, तो मैं चल रहा हूं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। क्या शुभमन गिल को पसंद है? क्या शुभमन गिल को नंबर 3 पर खेलना अच्छा लगता है? और अच्छा लगता है तो उसके लिए वो चेंज ला रहे हैं। दया भी कह रहे हैं कि दिस विल बी द लास्ट चांस फॉर गिल एट नंबर 3। मुश्किल है दया, आप किसको 3 पर खिलाएंगे? सवाल यही है कि आप किसको 3 पर खिलाएंगे। क्या फिर आप पुजारा की तरफ जाएंगे? या सौरभ का जो सवाल था वो भी अच्छा था कि क्या राहुल को आप नंबर 3 के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि वो खुद भी ओपन कर चुके हैं कई। वो तो मुझे लगता है कि राहुल जिसके नाम में लगा रहता है उसको सब कुछ करना पड़ जाता है। वो बैटिंग भी करता है, वो कीपिंग भी करता है, वो ओपन भी करता है, वो नंबर 5 पर भी आता है, तो हर चीज कर रहा है। तो उसको नंबर 3 पर भी आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इसके नाम में राहुल जुड़ा हुआ है। वन सैयद भाई, जब हम लोग ये सब बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारे साथ निखिल भी हैं। आई होप यू नो निखिल वेरी वेल, बिकॉज निखिल भाई सेम कंडीशन। अरे यार आप हमारे लोकल गोट हो, समझे ना। मैंने अभी तक मटन बनाया नहीं है, बड़ी जिंदा हुआ। तो निखिल भाई दूसरा है कि ऑपोजिशन स्पिनर्स का भी ना, लाइक अभी नाउ लीच इज रूल्ड आउट, अभिषेक इज जस्ट पोस्टेड इन द चैट। Yes, Leach is ruled out. How will Hartley respond, like what they will go with Shoaib Bashir and Hartley, and they are coming with the 4 spinners if I'm not wrong. The way Root is the spinner. Root is the spinners spinner. निखिल सर म्यूट पे क्यों बैठे हो? नहीं बोलिए बोलिए।
वही तो बात है, जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे, कंटिन्यूएशन में था, ये बशीर आया एंड द वे दे सो हैप्पी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ वो सेकेंडरी है, बट द वे बैश वीजा से वाइजैग आ गया था. so so the question is, Bass is going ahead with the four. They're saying the four spinners they will play with. So is this the more than a mind game, or do you really see that they will not play Anderson over there? What I personally feel Anderson instead of Wood could have been restricted India way before 400 in the first test. The way ball was reversing and the way Anderson maintained the line. We all know he is a real goat. So Nikhil, just share your point of view on this. Four spinner or 4+1 as an Anderson, because all four spinner can bat properly. 25 से ऊपर का उनका first class average है, and we saw the way Hartley and Ryan batted. हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक वो कर तो कुछ भी सकते हैं, एंड वही आई थिंक एक चीज जो हम सब ने काफी मिसअंडरस्टैंड करी बेसबॉल के बारे में, जिसकी देन उनकी मैं मीडिया को ही दूंगा, हमें नहीं, क्योंकि इतना जब आप कोई चीज को बड़ा चढ़ा देते हैं तो आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि उसका उल्टा सोचे. तो आई थिंक वो एक चीज बेसबॉल समझने में थोड़ी हम सबको देर लग गई कि वो बिना डरे खेल रहे. उनको अब इन्होंने इंडिया को देखो ना कैसे सिचुएशन में डाला है कि एक फॉरेन कैप्टन इंडिया में कोच आके बोल रहा है कि मैं 4 स्पिनर खेलने को तैयार हूँ. ये आप यूजुअली किसी ओपोनेंट कैप्टन से सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शन होते नहीं है. ये पहला ऐसा स्क्वाड है जो ना कि इतने ऑप्शन लेके आया है, थोड़ा आपको चेतावनी देने से भी नहीं पीछे हट रहा है कि तुमको जो जैसे पिच बनाना है बना लो, मेरे पास रिसोर्सेस हैं और हम बिना डरे खेलेंगे. तो वो एक मुझे लगता है जो मैंने आई थिंक प्रीव्यू में भी कहा था, दिस टेस्ट सीरीज इज पॉसिबली गोइंग टू बी लेगेसी डिफाइनिंग फॉर रोहित शर्मा, क्योंकि अगर वो इस सीरीज में बाहर आते हैं ऑन द विनिंग साइड, इट विल डू अ लॉट ऑफ गुड टू हिम एंड राहुल द्रविड़ एज अ सेटअप. क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम है ना, कई बार आप ऐसा ओपोनेंट आता है जिनके सामने आप थोड़ी गलतियां करें तो आप छूट जाते हो. इट्स ओके बिकॉज दे डोंट मेक यू पे. बट इंग्लैंड जैसी टीम है, आप देखो आप 1 घंटा बैठे ओली पोप पे और पोप आप पे बैठ गया, रिवर्स स्वीप मारे, इतने मारे, आप न्यू बॉल की वेट करते गए, उन्होंने 70 रन मार लिए. तो ये चीज जो है इंग्लैंड की, वो आपको बता रही कि वो तैयार हैं, आप उनको कुछ भी डालो. और अभी तो उनके पास रूट भी है, और पहले इनिंग में उनका सबसे अच्छा बॉलर रूट था. तो हार्टली पे तो हम बाद में आएंगे, पहले रूट को कैसे ओवरऑल टेस्ट मैच में वो अच्छा बॉलिंग किया, मतलब उसी के बॉल पे ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस लग रहे थे मेरे को. और ये देखो जो माइंडसेट है, जो हम देवाशीष दास से भी सुना कि सारे इंडियन बैटर्स अब स्वीप कर रहे हैं, बट ये नेचुरल शॉट नहीं है उनके लिए. तो आप कब करोगे, किस सिचुएशन में, उसमें फिर आपका शॉट सिलेक्शन बहुत क्रूशियल हो जाएगा. तो आई थिंक मैकलम क्या बोल रहा है वो तो अपन पिच देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने भी अभी डिस्कस करा, शायद आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी दोनों टीम्स, कि भाई हमें 3 स्पिनर चाहिए, 1 पेसर और एक शायद आपका ऑलराउंडर हो. तो इंग्लैंड मुझे लगता है सीधा सीधा शोएब बशीर को तो रहेगी, क्योंकि वो वापस आ गया है, जैक लीच बाहर है. तो मुझे लगता है जैसे आपने कहा एंडरसन उल्टा थी, वो इंडिया के लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि वुड मुझे लगता है एक बार आप उनको खेल के निकाल सकते हो विद द पेस, पर भाई एंडरसन की वो रिवर्सिंग वाली विकेट हम सबको याद है 2012 सीरीज वाली, तो वो कोई नहीं भूलने वाला. और वो डालेंगे भी किसको, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और इन सभी को, जिन हमें ऑलरेडी जिनके लिए डर है कि भाई इनको इन स्विंग परेशान करेगा. तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सेटअप, उनको तो मेरे को लगता है नाम ही परेशान करने के लिए काफी है. मतलब कैसे है देखो, जब पुणे हुआ था, रहाणे का विकेट अभी भी याद है, वो दोनों मिडिल एंड लेग स्टंप गोइंग लाइक दैट एंड व्हाट इट वाज. क्योंकि देखो मेरा लॉजिक है कि 2017 जब पुणे हुआ था, तब यू स्टिल हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि दिस कैन नॉट हैपन अगेन, बिकॉज यू न्यू कि शायद ये एक बार हुआ है. जब चेन्नई हुआ तब भी आपको ऐसा लगा कि ये शायद वापस ना हो. बट इस बार जैसी स्थिति इंडिया के बैटिंग की है, नाउ यू कैन नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड से कि भाई जैसे इंडिया की इनएक्सपीरियंस बैटिंग है, आप ये खुले से नहीं बोल सकते कि भाई अगर रैंक टर्नर डाला तो सामने वाले के पास जो गैप है दोनों टीम का वो बहुत कम हो जाएगा, और आपके पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर है जो फॉर्म में नहीं है. तो आई थिंक दिस इज, आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है ये रोहित शर्मा के शायद सेकेंड इनिंग जो है टेस्ट करियर का, उनकी सबसे बड़ी टेस्ट मैच हो सकती है. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही स्कोर्स अ वेरी बिग वन, क्योंकि he has done that whenever we felt के the time is running out, not for the batter but for the captain and the coach combination. तो
प्रेशर तो डालेगी बिल्कुल इंग्लैंड, बट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट इंडिया प्ले। और इस बार देखना पड़ेगा क्योंकि शोएब बशीर, भाई मैं थक गया हूँ डेब्यूटेंट को 5 विकेट सुन के। तो हार्टली का वो स्मार्ट है यार, वो खुश होंगे। हार्टली हर का डेब्यूटेंट इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे ही करता रहा है यार। गॉड मर्फी, मैट कुन्नमन, स्टीव कीफ, अब मैं बस How प्रे can कर रहा you हूँ। forget the name of Jason Krisa? नहीं वो भूल नहीं, हाँ, उनको तो फिर भी रन मारे थे काफी, मेरे को वो मारे थे 8 रन, विकेट 200 खेले। 234 हाँ। कुछ रन मार दिए थे हाँ, क्रिसा बट एक चीज जो बस मैं आप कहेंगे उस सीरीज से मैं ये लूंगा, या जो 8-1 वाला फील्ड था, जो हम सबको याद है, जो एमएस ने लगाया था एक बार कि कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने कुछ अलग किया था। मुझे लगता है अगर इस मैच में अगर इंडिया कुछ अलग नहीं करेगी, मैं ये एग्जांपल इसके लिए नहीं दे रहा हूँ कि भाई धोनी है कोई भी हो, माय पॉइंट इज दिस इज नॉट अ टेस्ट टू वेट, दिस इज नॉट अ टेस्ट मैच टू वेट। तो आप जो भी बना रहे हो, आप आपकी 11 बना रहे हो, आप आपकी पिच जैसे बना रहे हो, क्योंकि इंडिया ने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग अप्रोच। हमने एक ही इनिंग में उनको, पहले इनिंग में बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते थे और हम सब बोले थे अरे यार आपने 60 रन कम मारे, आपको 600 मारने चाहिए यहाँ पे। और सेकंड इनिंग्स में वही बैटिंग लाइनअप इतना डर के खेल रही है कि ऐसे कैसे होगा। तो ये मिस मुझे नहीं चाहिए कि आप हारो, इट्स ओके, सामने वाला भी जीतने आया है, पर आप ऐसे नहीं हार सकते कि आपका जो स्ट्रेंथ है आप वो ही ना करो। तो बहुत ही मजेदार टेस्ट होगा ये, आई थिंक शायद यादगार भी होगा, होपफुली फॉर द राइट रीजंस। यस यस। हमारे पास अक्सर हमारे बोला पास जाता है कि आप लोग के पहले हमारे पास एक फेक लाइफ है, उनका नाम मुझे पता है कौन है, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ यहाँ। तो फेक लाइफ के नाम से आते हैं हमारे वरुण गिरी, उनका मैंने उनको भी व्हाट्सएप किया था कि यार बता मेरे को कौन है नंबर 3। हमारे पास आंसर नहीं है, बट उस छोटू के पास आंसर है। ये रहा उसका आंसर, सुदीप घरामी, बंगाल, राइट। एंड ही स्कोर्ड 800+ रन। लेकिन वही है सौरभ की मुश्किल है वो, आप सरफराज ने कितने टन्स और टन्स रन बनाए और अब उनको मौका मिला है, तो बहुत 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 मुश्किल है आपको तुरंत रिप्लेस करना। आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक अनमोलप्रीत सिंह करके थे, पंजाब से खेलते थे, हैं भी वो थे, आ गया अब, क्योंकि जो फॉर्म में वो थे, जिस हम लोग ने रिसेंटली बात किया था, आई थिंक वी आल्सो डिस्कस, तो उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था कि क्या ये, और वो भी खेलते थे इत्तेफाक से उसी स्लॉट पे, अनमोलप्रीत सिंह। तो ये देखिए, ये जो चीजें होती है ना, खासतौर से कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आप कितना ज्यादा तरजीह देते हैं, यही अनमोलप्रीत सिंह अगर आईपीएल में रन्स बना देते तो शायद लाइमलाइट में आ जाते। यही घरामी साहब अगर आईपीएल में किसी टीम से खेलते होते और रन्स बना देते, शायद लाइमलाइट में आ जाते। ये हमारी विडंबना है सौरभ, कि बिल्कुल, कि हम टेस्ट मैचेस तो देखते हैं लेकिन प्लेयर्स उठाकर लाते हैं आईपीएल से। अजिंक्य रहाणे की भी वापसी जो हुई थी इंडियन टीम में पिछले साल, वो भी आईपीएल में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में उन्होंने बड़ा तगड़ा फॉर्म दिखाया था, तो वो चले आए थे। तो ये हमारी आयरोनी है। चेतेश्वर पुजारा आईपीएल खेलते नहीं है, तो उनके तरफ आप कोई जाएंगे नहीं। सरफराज खान का आईपीएल उतना अच्छा रहा नहीं कभी। डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी क्रिकेट में जमकर रन बनाते थे वो, लेकिन आईपीएल में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, उनकी तरफ आप नहीं जाते थे। तो इसलिए घरामी की जो बात हो रही है बंगाल वाले, मैं वही कहूंगा कि अगर वो आईपीएल को थोड़ा दिल से चाहे और खेले, उधर जाए, तो शायद फिर उनका नाम इधर भी आ सकता है। ये विडंबना है, सॉरी टू से, बट इसको आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन अभी ताकत की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा भटक गया। स्पिनर्स की बात हो रही थी कि आप स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। जैसा निखिल ने बताया, बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि अब वो वक्त है कि अगर वो 4 स्पिनर, अगर आप रैंक टर्नर भी बना देंगे तो इंग्लैंड कहेगा कि भाई मेरे पास 4 स्पिनर है, और मेरा जो चौथा स्पिनर है वो जो रूट है, जो पिछली बार भी 6 विकेट जिसने चटका था, इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट भी वो ले चुका है भारत के अंदर में ही, तो उनके पास वो पॉइंट है। लेकिन एक आंकड़ा, श्रेयस अय्यर की कुछ देर पहले बात हो रही थी, कहा जाता है कि वो शॉर्ट गेंद पर फंसते हैं। मैं ही कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सवाल उनसे पूछे जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्रेयस अय्यर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्पिनर्स को, लेकिन आंकड़ा क्या कहता है वो आप चौंक जाएंगे। भारत के अंदर में पिछली 13 पारियों में 10 बार श्रेयस अय्यर स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं। एवरेज उनकी रही है 17-18 के आसपास। यानी आप स्पिनर्स के अगेंस्ट बोलते तो हैं कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्या आप सही में खेल पा रहे हैं? रैंक टर्नर अगर आप देंगे तो आपके सामने श्रेयस अय्यर हैं, आपके सामने शुभमन गिल का इनएक्सपीरियंस है, रजत पाटीदार या सरफराज जो भी आते हैं जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं,
उसके अलावा फिर आपके टेलेंडर शुरू हो जाएंगे। टेलेंडर्स इन द सेंस मैं बोल नहीं सकता हूँ, अक्षर पटेल और अश्विन अच्छी बैटिंग करते हैं, मैं टेलेंडर नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी लोअर ऑर्डर शुरू हो जाएगा। तो आप किस हिसाब से वो रैंक टर्नर की तरफ भी इस बार आप जाएंगे? मैं 100% निखिल से ये एग्री करूंगा कि ये बड़ा डायलेमा में फंसे हुई होगी अभी मैनेजमेंट, कि क्या हम सही मायनों में रैंक टर्नर कर दें? अगर रैंक टर्नर हम कर दें तो क्या वो बैकफायर नहीं कर जाएगा हमारे ऊपर में? अगर आप पे 150 की भी लीड लेते हैं और जिस अंदाज में इंग्लैंड खेल रही है, जिस अंदाज में खेल रही है, वो 150 रन तो आप पे 20 ओवर में खत्म कर देंगे, 22 ओवर में खत्म कर देंगे वो। तो इस बार सही मायनों में बड़ा दिलचस्प होगा देखना। मामला बड़ा फंस सकता है, जब तक विराट कोहली की वापसी होगी तब तक 2-0 अगर हम पीछे हो जाएंगे तो फिर तो समझिए कि गए। हमारे पास आई थिंक 2 लिसनर काफी अच्छे, 3 हैं हमारे, वल्लभ, अभिषेक और सर्वेश। इनको भी मौका नहीं मिला है, तो आई थिंक एग्जैक्टली सर्वेश से मैं स्टार्ट करूं, देन आई विल गो टू वल्लभ एंड देन अभिषेक। सौरभ, मुझे भी निकलना होगा भाई 10 मिनट में। हाँ ठीक है, हम लोग भी यार, हम लोग को भी डन। जाना ही है, हम सबको जाना है, आने के लिए तो जाने के लिए तो आना होता है। तो इसके बाद इन तीनों के पॉइंट ऑफ देने के बाद हम सब एक बार टॉप 11 देख लेंगे। और चूंकि you guys are somewhere down the line near to the ground zero, I just wanted to know, I asked to Debasis also, who talked about the rank turner stuff and all, what the pitch is all about. We'll discuss about for the 2 minutes because that's a very important part at we all are discussing about. So Sarvesh, आपके पास जो नंबर थे, जो आपने क्रंच किए हैं नंबर को, उससे एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली फॉर द सेकंड टेस्ट मैच जो आपके पास नंबर्स है पाटीदार इनके, और ओवरऑल जो हमने डिस्कशन किया है, what do you think exactly? What is coming out as per you? Because you are one of our guy who exactly work on numbers. So as per I think जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना कि स्वीप शॉट खेल रहे हैं, और अगर इफ वी आर इंसिस्टिंग ऑन प्लेइंग स्वीप शॉट्स, तो आई थिंक सरफराज खान, अगर उनको आपने देखा होगा डोमेस्टिक में वो स्वीप्स मार रहे, क्योंकि मैदान से खेल के आते हैं वो। मुंबई में आजाद मैदान पे देखो, और जो भी मैदान वाला जो प्लेयर है मुंबई का, मैं पर्सनली काफी उनको देख चुका हूँ मैदान में खेलते हुए, वो स्वीप शॉट अच्छे मारते हैं। यस, मैंने उनको काफी बार देखा है, मतलब मैदान पे खेलते हुए देखा, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं सरफराज। अगर वो मुंबई से रणजी मैच भी खेलते हैं ना, नेक्स्ट डे पे उनका क्लब का मैच होगा मैदान में, वो आपको मैदान में दिखेंगे। लोगों को पता है कहाँ पे रहते हैं वो, तो लोग वहां पे जाके खड़े होते हैं, वो आते हैं और खेलते हैं, और एकदम धमाकेदार बैटिंग करते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि वो स्वीप शॉट अच्छे खेलते हैं, और वो उस तरीके के विकेट्स पे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर हम स्वीप शॉट की तरफ देख रहे हैं, तो आई थिंक सरफराज का खेलना तो बिल्कुल बनता है। मतलब अगर हमें एक ही प्लेयर खिलाना है, और अगर हम सोच रहे हैं कि एक बॉलर अंदर आएगा इंस्टेड ऑफ सिराज, और एक बैट्समैन अंदर आएगा, और एक स्पिनर रिप्लेस करेगा जडेजा को, अगर एक ही बैट्समैन खेलना है तो आई थिंक सरफराज को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वीप का सोच रहे तो। ये मेरा पहला था। और दूसरा, आई थिंक मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा, सिंस सैयद भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको भी रैप अप करना है। एक पोजीशन की हमने बात की कि चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 का जो स्पॉट था हमारे पास डोमेस्टिक में, उसके ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से एक और पोजीशन है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, और हो सकता है कि आगे वाले टाइम पे हमको बात करनी पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए भी हमारे पास डोमेस्टिक में ऑप्शन ज्यादा है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अश्विन के पोजीशन के लिए, क्योंकि अगर कल लेफ्ट आर्म स्पिन को कुछ हो गया तो हमारे पास अक्सर है, अभी सौरभ है, शायद शम्स मुलानी भी आ सकते हैं, और साई किशोर, मतलब हमारे पास ऑप्शंस तो है वहां पे। लेकिन अगर हम अश्विन को कल, हाँ, तो अगर कल अश्विन नहीं खेलते हैं, शतक लगाया था आखिरी मैच में जयंत यादव, हाँ, तो जयंत यादव एग्जैक्टली, तो मतलब सीधा जयंत यादव हमारे पास सैनी और जयंत यादव तो गजब लेवल का आदमी है, आई एम सॉरी टू से। हाँ, तो मतलब ये दो ही प्लेयर्स मुझे दिखते हैं। ऑफ स्पिनर्स कम है बिल्कुल, मतलब मुझे दिख रहा है कि जलज सक्सेना और जयंत यादव, बस दो। इनके अलावा मुझे कोई, अगर आपके मन में ऐसा कोई हो कि एक यंग ऑफ स्पिनर हो जिसको हम लॉन्ग टर्म ग्रूम करने के लिए देख सकते हैं। फॉर नारंग का तो बहुत नाम सुना था, लेकिन वो भी फिर वो ही गए जो होना था, नाम ज्यादा उठ रहा है। शायद सुंदर को ये लोग ग्रूम करेंगे, शायद वॉशिंगटन सुंदर की तरफ शायद जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई वो बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेगा, तो अश्विन की तरह हो सकता है। गलत बोल रहे हो, मोर ऑफ सैयद भाई वो T20 में ज्यादा विकेट लेता है, विकेट लेता है वो T20 नहीं, वो वहां पे भी 1 for 24 लेगा। आपको टेस्ट मैच में 1 for 24 से काम नहीं चलने वाला। तो वो बात मुझे लगता है कि इंडिया को, आई थिंक ये चीज, वो टाइम आ गया है जब इंडिया को इकट्ठा होकर ये करना पड़ेगा कि जब हार्दिक पांड्या अगर वनडे टीम से बाहर जाता है तो आप पगला नहीं सकते कि भाई कैसे बैलेंस होगा। ये सेम चीज हो रही है रविंद्र जडेजा के साथ, कि एक प्लेयर टीम से बाहर जा रहा है और आप एकदम हड़बड़ा जा रहे हो
कि भाई मैं टीम का बैलेंस कैसे करूं। तो आई थिंक ये एक इनिशिएटिव ले लिया जाना चाहिए कि आप ऐसे परफॉर्मेंस ढूंढें कि एक ग्रुप हो 10 प्लेयर का, जिसमें से 10 मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो, 10 आपके ऑफ स्पिनर हो, और इनके साथ आप कैंप बिठाए, आपके पास रिसोर्स है, पैसा है, सब कुछ है, क्योंकि लेकिन कल सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कैंप भी देखेंगे ना, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ दें, आईपीएल की तरफ भी आ जाए, वो 4 ओवर वाले बॉलर की तरफ भी आप आ जाए, तो आप देखें कि किसके टीम में ऑफ स्पिनर है, हाँ किसके एग्जैक्टली, टीम में। हाँ मतलब जो भी बिल्कुल। है सब एक एक एकदम ही एक यंग है। ऋतिक, शायद एक ऋतिक शौकीन नजर आएंगे मुंबई इंडियंस के पास, और कोटियन, तनुष कोटियन, तनुष कोटियन बस रणजी में। कोटियन नजर आएंगे, हाँ और वो भी मतलब उस क्वालिटी के नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जो अश्विन को रिप्लेस हाँ करने की हम बात कर रहे हैं वैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि शायद ऑफ स्पिनर की तरफ आपको देखना पड़ेगा। और एक वक्त था जब 3-3 थे हमारे पास, हरभजन खेल रहे थे, शरणदीप भी थे, और अश्विन की भी एंट्री रेडी हो है, चुकी थी, होने रेडी वाली थी, थी। अश्विन भी होने वाली थी। वो बिल्कुल तो एक वक्त वो था, और अभी एक ऐसा दौर है, एक आया था बीच में, सब देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मुतैया मुरलीधरन का एक्शन था उनका, वो तो और खत्म वो हो गया ना, राजेश, तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, गुजरात में परमार था। परमार मोनीश परमार। परमार परमार, परमार उसको भी आपने खत्म कर, नहीं एक्शन। रमेश, वो जिसके राजेश और रमेश पवार तो वैसे नहीं ही थे, नहीं, वो परमार वैसे गुजरात परमार गुजरात परमार गुजरात से थे, गुजरात से थे। इसको राइट, खेलने के गुजरात बाद से थे। जिसके एवरेज आई थिंक 25 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 या 250 विकेट थे, और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब खेला था, वन ऑफ द फर्स्ट क्लास मैच, प्रैक्टिस मैच, दे वर एक्चुअली स्टन्ड टू प्ले हिम। आई स्टिल रिमेम्बर वो 2003 और 5 का टाइम का पीरियड था, जब एग्जैक्टली वो खेल रहे थे, मोहनीश परमार या कुछ ऐसा नाम था उनका। वो उसमें 18 या 20 साल के बंदे थे, लेकिन जब वो बाद में अपना उनको जबरदस्ती का उनको करवाया गया बोल के कि नहीं आपका, अब मुथैया मुरलीधरन कर सकता है, आप नहीं कर सकते बिकॉज आपकी कोहनी में प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वो थ्रो नहीं कर रहे थे, ही वाज जस्ट स्पिनिंग टू द रिस्ट। और उस समय वो उतनी ज्यादा मतलब माइंडसेट नहीं था लोगों का, और इंडिया का भी उतना पावर नहीं था। पर आज अगर ऐसा बंदा कोई आ जाए, क्योंकि हमें वी ऑल रिमेम्बर दैट द वे this guy Malinga had ball, it was Malinga only got an excuse because they told that he cannot ball like this. Now Malinga को देखते हुए कितने हमारे बिहार में बोलते हैं झोलटंगा, कितने आ गए पतिराना, और अभी वो तुषारा, कितने लोग आ गए। आप सोचो कितने लोग आ गए, वो चल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परमार की किस्मत बर्बाद कर दी उन्होंने। वो जब आए बाद में एज ए ऑलराउंडर खेला उन्होंने, बट 3-4 मैच के बाद he got to know that he cannot take wickets and he retired. That is the saddest moment I can have in my life because I was such a huge fan of that guy. देखिए इसका एक रीजन भी है, सौरभ, ये थोड़ा सा हो सकता है मेरी बात हार्श लगे, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आज के टाइम पे अभी क्या है ना, कि इनको भी एक ऐसा दिमाग में डाल दिया है कि यार ऑफ स्पिन तो ऐसी चीज है, कोई भी कर लेता है, कोई भी जो बैटर है वो आकर ऑफ स्पिन डाल लेता है, चाहे इसी वजह से वो इस तरीके की जो क्वालिटी है वो अब धीरे धीरे वो गायब होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। इसका एक रीजन है रोहित शर्मा का हैट्रिक है और अश्विन का नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। मैं देखिए, मैं बोलूंगा शायद बुरा लग जाएगा इसमें, ज्यादातर कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है, फिर भी मैं कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि अक्सर मैंने देखा है, कई संस्थानों में भी रहा हूं कि अरे हिंदी एंकर है, हिंदी का क्या, हिंदी एंकरिंग तो कोई भी कर लेगा, बहुत टफ है। एग्जैक्टली वही चीज है। वर्ड्स नहीं मिलते बीच में। अरे ऑफ स्पिनर क्या है, ऑफ स्पिन तो कोई भी कर लेगा, रोहित शर्मा भी कर लेता है, अपना हैट्रिक भी ले चुका है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और अगर उसने ऑफ स्पिन की भी तो फिर तुरंत जो टीम है वो ये सोचेगी कि क्या बैटिंग कर लेता है, सिर्फ ऑफ स्पिनर को मैं क्यों टीम में रखूंगा यार, अश्विन भी टीम में इसलिए कि बैटिंग कर लेता है। इन चीजों से ऊपर आना पड़ेगा। नेथन लायन को अगर आपको लाना है इंडियन टीम में, तो फिर आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हिंदी एंकरिंग सिर्फ हिंदी वाला बंदा ही कर सकता है। I still remember शायद भाई बेसबॉल खेल गए, आपने नोटिस किया नहीं किया हो? भाई मैं इसके ऊपर एक बात बोलना चाहूंगा। I was actually मैं सुन रहा था इसको, अपना ये जो है ना स्टार वाला, क्या नाम है बंदा का नाम ही भूल गया, जतिन सप्रू का एक सुन रहा था। तो जतिन सप्रू जब कॉन्टेस्ट के थ्रू ज्वाइन किया स्टार, तो वो काफी जगह गए, इंग्लिश में काफी अच्छे थे, इंग्लिश में बोलना शुरू किया, एंड एक ऑप्शन स्टार्ट हुआ कि आप हिंदी भी करेंगे बिकॉज टू मेनी पीपल आर द हिंदी स्पीकिंग गाइज, एंड उनको बोला कि एक ही ऑप्शन है कि आप हिंदी में बोलिए तो आपको हम एंकरिंग देंगे, बिकॉज दे डिडंट हैव एनीवन। अब उस बंदे ने आई थिंक 7 से 10 दिन का मौका था सिर्फ,
प्रूफ करने के लिए। वो 10 दिन उसने सोचा ठीक है कर लेंगे, हिंदी तो है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो हिंदी पे बोलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे आ रहे थे जिनकी हिंदी मतलब आती नहीं थी उनको। आते, हम लोग को भी नहीं आती यार, मुझे भी नहीं आती। आई अब थिंक मुझे आप इंग्लिश एंकरिंग करने को बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे कई ऐसे वर्ड्स है जो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं याद आएंगे। तो कुछ चीजें उसी तरीके It's से अगर thinking का भी है ऑफिस ना, बिल्डर like को एग्जैक्टली it's उसी तरीके difficult से to think in Hindi. Like, I ऑफ can't think एक in स्लो Hindi. लेफ्ट आर्म I'm स्पिनर को thinking in बोलोगे कि English ऑफ and स्पिन करो, translating. ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मेरा ऐसा ट्रांसलेशन चल रहा है माइंड में कि ऐसे पहले हिंदी इंग्लिश में सोच रहा हूँ, फिर उसको कन्वर्ट करके। सैयद तो वो भाई का lag कैमरा रुक हाँ। गया है या आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू होगा। DRS डीआरएस? Review जब भी में डीआरएस तो- की बात जब भी डीआरएस की बात होगी तो हमें वल्लभ के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऑनर वही हैं। तो वल्लभ भाई, यस, टीवी अंपायर टू डायरेक्टर। तो आप बताइए जो बात चल सौरभ रही भाई थी। बैठ क्या हुआ? एक It was a fair comment. It was a fair comment. Can you please get the anchor to do this? हाँ वल्लभ, Please. से समथिंग। regarding बेटर है ना केएस भरत का, केएस चलो भरत। बैक। तो Yeah, actually, KS Bharat ka, what I was saying is last game was a good outing for him. Like as far as test batting. So what other expectations you guys have? Like if you KS must have Bharat will seen him be in domestic. KS Bharat. This is KS Bharat's home pitch. He'll definitely come good. I have told to Saurabh bhai in the last session also. They also had a bet टेस्ट by. अगर suppose test KS match. Bharat scores good tomorrow, will be not be that guy will be skipping one session for the betterment of the Indian team. KS Bharat is not going to play more than 12 test matches. So it doesn't matter how many test matches he plays. It's important कि जितने भी वो खेले अच्छा खेले. हाँ, It doesn't हाँ, matter. अच्छा He खेले, can play वही। 2 only. He can retire after नहीं, this series. I don't. Nikhil bhai, I didn't mean to say that. If हाँ. I'm saying that he will play 12, it means that what I personally feel, जितना मैंने उनको देखा था बैटिंग, सुना था उनके बारे बैटिंग पे, the way he presented, the way he played himself in Ranji and all, the way he did Saurabh bhai, amazing. one second. Just because Jadeja will be not playing this match, it means Bharat will be playing up the order. He'll have much Yeah, responsibility. it's a important, important. And role. that is also crucial because see, it's same thing that is happening with Akshar Patel, right? He's Yeah. batting at number 9. At number 9, if you're batting going with the tail, And your mindset is going to be have completely different. one thing that maybe management will push Akshar Patel in place of Jadeja and play Bharat still Yeah. down there. Yeah, see, that is That also will happen. possible. But the point here is, till the time Rishabh Yeah, gets there is fit, the one thing, Syed is not joining back because his And- mobile has discharged. So he Oh, said thank okay. you so much on behalf of him to each and every one, all the Thank panel you, bye. members. So Thank you, sir. now it's हमारा chance है, तो as usual हम लोग फिर से आ गए अपने numbers पे, तो let's 10 नहीं, minutes के mainly अंदर what I was Okay. asking is ना, RCB made KS Bharat open and then उसका totally different side आ गया. So ऐसा कुछ टेस्ट में हो सकता है क्या? We'll not RCB, talk about let's RCB. not now, RCB not is the out of place question. or the RCB time. is like Talk about RCB नहीं, will वो never win a series. दुबई में नहीं, दुबई में एक दो इनिंग्स ऐसे खेले कि केएस भी लगा था कि यार कुछ तो है. नहीं if you No, look see, at that is- KS yeah. Bharat's domestic record ना, उसका domestic record हाँ. देखो और the 300 that is scored, उसका वो टीम देखो, सामने गोवा था और अब उसका देखो batting अभी कोई position बात नहीं करेगा, निखिल भाई के फैन का Respect कॉल to Nikhil. है। ये प्लान कर रहे हो कि बोल रहे हो ये भी पता नहीं, पर ठीक है, I'll take it very happily. I don't know, previous Do you- last time भी आया था ना हमारे, 2-3 बार तो आ चुके ही है। ये हमेशा Do you क्वेश्चन really पूछते हैं feel इस तरह से। England will lose the PBS momentum is after the peripheral break blood in smear for India? me. See, honestly, I'll be very, very honest. I don't think all of us rated आप कब England that ऑनेस्ट highly. नहीं हो तो ये बताओ, अगले बार से बोलना है वेरी वेरी डिसऑनेस्ट, तब मैं मानूंगा। हाँ तो मैं ये भी अच्छा मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। नहीं होते कुछ यार, I say something, people still take it the way they want to, because see everybody eventually For us, judges it's by their honest only. perception. Everybody judges by their first perception of me. Okay, this is what he said once, so he'll be of that image and thoughts only. So and the point about England is it changes. As I said just थोड़ी देर पहले मैंने बोला, I don't think I thought of baseball the way it is right now when I first heard of it. Because at then I was looking at the picture that the media was creating and not how the team was playing. But now it is right in front of you in terms of when there is pressure,
England does not mind losing. And I think that is the biggest benefit that any team can take away. So ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि that is the way everybody should play that way. But it's a very good insight and credit to them, to Stokes, McCallum, कि they have given them that freedom that if tomorrow Ben Duckett gets out reverse sweeping every single series, every single game, They won't he ask will you to still get they will still get the 6th test. But we will not give 6th test to Shubman Gill if he keeps getting out to mid on. Because we will Right. say, yeah, IPL shot. So that is the bit that I feel is very, very key with England. And whether they will lose momentum, to be honest, they only got momentum after day 3. So day 3 tak to momentum was not there with them. So they were 163 for 5. And that's where I feel the difference lies between India and difference was that England did not wait, India waited. India were like, okay, we will get one chance at least. Pope will miss it one, or Rehan Hebert will do something, or folks will get out early, but it did not happen. So I think England will continue to risk, and India's best chance is to catch them in that risk earlier and be more ready because I mean everybody knew that they will sweep and reverse sweep. Now they know it even more. So I think the pressure for England will not be with the ball, with the bat. I think it will be with with the ball more because India is inexperienced now. So England knows that if India is if they are able to take Rohit early with no Rahul, with no Virat, this could really be a test to remember for them. And which is why I want to play the two form players because it is like simple muscle memory. You are in form, you are making good decisions, you are more hungry for runs, and Go ahead. you will know Yes. okay, you will not want to miss out. And again, see, they could both get out first ball. That's okay. But then you have to play the percentages. So whether they will lose the momentum or not, I don't know. But they'll keep attacking. That is something that we should definitely be ready for. If England Absolutely. wins this match, it's very tough for India to come back. Psychological feeling Yeah, I and all think things. yeah, which is why I said this is probably India's biggest test in a long time. I feel In more 10 than years. 2017 and And 21 also without because Kohli, and without Rahul, And without without Jadeja, Rahul, and it's Jadeja. very tough. But Yeah. I am really happy and I'm really looking forward to this test match. Abhishek, 100%. Yeah, make but sure one you go to thing, the stadium. No, because Abhishek, see, you're going to the stadium, right? Make sure India yeah, plays yeah. well, motivate them, take a mic, shout, let India win. Yeah, I'll tell one point. Like, see, from the last 4 5 years, I think whichever Indian batter had made his debut, be it Mayank Agarwal at Melbourne or Yashasvi Jaiswal now, or you look at century, half Prithvi Shaw century. also, they have bashed it out of the park. So I'm expecting them, and I Yeah. hope that they'll give a good wicket, good first innings, second innings wicket, so That I that don't- वो तो हो गया Shabnaz ना that I'm बात. not Second, sure. वो तो देवाशीष दा ने आके बोल के second गया ना. most experienced देवाशीष दा बोल के batsman गया, is one Ashwin. point from day one. So Ashwin might come good. So that also don't discount that. Ashwin is the So second Rohit most. Sharma is not experienced, Yeah, batsman he's the for second them. after Rohit Sharma. The maximum responsibility is Yeah. with like Bharat and Ashwin again. So So, अक्षर अभी अक्षर Rohit, अक्षर के नंबर्स Yeah, देखो, Akshar अक्षर का हाँ, बैटिंग फॉर्म yeah, एकदम Akshar ka, सुपर्ब है. Akshar ka. हमें अक्षर दा बॉलर चाहिए ज्यादा एट दिस मोमेंट. वो बॉलर लास्ट सीरीज वाला टक करके आया. वो हाँ, अक्सर के का लिए बॉलर big वो balls, उसका big 5 balls. overs में 40 रन ले लिए वो लास्ट इसमें बहुत नहीं बेचारा यार, अगर हिल गया। देवाशीष साहब बोल रहे थे ना रैंक टर्नर, क्विक टर्नर हो सकता है, तो उस पे फिर तो हाँ, यार quick अक्षर turner, हाँ। तो धूम मचा देगा यार. Lethal. ये पिच पे तो Yeah. अक्षर वो के तो लिए पिच बनी है. कौन सा सीधा जाएगा कौन सा टर्न होगा वही I वही think सोचते Kuldeep हैं। will only हाँ. play ahead of Washi. आई हाँ, थिंक हाँ ये हो सकता है. आई थिंक लेकिन इफ देखो इट comes down, वाशी के चाहने वाले Because बहुत if I, हैं. if, Serious if problem. I correctly remember, when Kohli was injured and Shreyas was bought in cover around 2017 or 18, I'm not sure. Kuldeep made his debut. yeah, He went with an that's extra right. bowler, and Kuldeep was man of the match that time. धर्मशाला Kumble Kohli हाँ started हाँ, from the beginning. वो जो he एपिसोड took हुआ David था Warner's कुंबले wicket का. and एक collapse शुरू हो गया। ठीक है गाइस. And Rahul, लेट्स स्टार्ट विद द टीम 11 फाइनल 11. लेट्स गो अहेड. निखिल भाई का तो मुझे पता है. निखिल भाई लास्ट टाइम भी बोल के गए, लेकिन चलो निखिल भाई आप ही से स्टार्ट करते हैं. आपका 11. हाँ तो रोहित जायसवाल, गिल, श्रेयस अय्यर, पाटीदार, सरफराज, अक्षर पटेल, 6 पे KS भरत, अश्विन, बुमराह, कुलदीप. 4 bowlers. 11. Yeah, 4 बोल bowlers. देंगे. 4 bowlers. गुड. Again, ऐसे assuming फिर it, performed होता है. assuming it's a fast run turner. If it's a flat deck, they'll drop one batter and get a pacer. It can be Sorry. Mukesh, it can be Pacer Siraj, और- whoever you want to.
Abhishek. Yeah, I think if it's a rank turner, probably what Bai said makes sense. But if it isn't, I think Siraj should still play, and Kuldeep comes in, not Washington Sundar. I hope sense prevails. Sarvesh. मेरा टीम सेम है. Only changes instead of Kuldeep, I'll play Saurabh Kumar. I'll give debut to him. Vallabh. Yeah, same team with Nikhil bhai, but I don't want to play an extra batter. I want to go with one bowler extra, Siraj or Kuldeep, depending on the game pitch. Manju bhai, with explanation. No, mine is I'm also I am in favor of this Patidar and Sarfaraz together and giving debut to Saurabh Kumar, but it's little less likely. Mostly Kuldeep will make it. सबको खिला दो भाई कैसे? नहीं ये मेरा भी सेम टीम है यार, मतलब मुझे भी ये लगता है 3 डेब्यू या तो 3 debutants I don't think India will risk. ये भाई नहीं क्योंकि कुछ बैगेज नहीं है ना, सब तीन तो है ही ना बेटा. दो है ना, दो बंदे हैं. अब Siraj, nobody is expecting Siraj to play. That's the point, right? Because Siraj's role was very limited and Bumrah on Bumrah outboard in that first test. Same point. See, Siraj you did not even use as an option. It was like an afterthought for you. So it's not worth it. Yeah. अभी आप बोलो सर. आप किल आउट भी नहीं खिला रहे थे लास्ट गेम में. इनका बोलेंगे तो और अक्षर पटेल भी नहीं खिला रहे थे लास्ट गेम में. हाँ तो इसीलिए हारे ना. तो मेरी टीम को करके बेचारा गाली खा रहा है. बताओ. मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ कि कुलदीप और मुकेश मेरा लास्ट टीम में था, तो मैं वो ये नहीं बोल रहा, वो तो मजाक कर रहा था. अरे अभी चेंज बोलो. अभी चेंज मैं बैक कर रहा था. अभी बोलता हूँ मैं सेकंड टेस्ट पे चेंज बताओ बस. हाँ बस चेंजेस नहीं. देखो मेरे को अगर पॉइंट मैं अगर नंबर 5-6 पे सरफराज को खिलाना है, खुद इसके जगह पे क्या नाम है इसका, केएल के जगह पे, तो आई विल गो विद सरफराज. ओके. जडेजा के मुझे नंबर 3 या नंबर 4 पे खिलाना है तो आई विल गो विद पतिदार. 3 पे तो गिली खेलेगा सर, वो तो चेंज नहीं होने वाला है. नहीं मैं बता रहा हूं भाई. ऑर्डर बताओ ना यार. ऑर्डर बताओ. आप डायरेक्ट ऑर्डर बताओ. आप आपका ऑर्डर बताओ. हाँ बस. सो मेरा ऑर्डर रहेगा सेम. रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, दिल से नहीं बोल रहा हूँ फिर भी गिल तो खेलेगा ही. नंबर 4 पे आई विल गो अहेड पर्सनली विद सरफराज. 5 नंबर जाएगा मेरा, मैं अक्षर को भेजूंगा. ओके. 6 पे मैं जाऊंगा आपको भरत के साथ. श्रेयस को मैं खिलाना नहीं चाहता अनफॉर्चुनेटली. ओके. कंटिन्यू. श्रेयस की जगह पे, लेकिन चलो श्रेयस तो खेलेगा तो बोल के फायदा नहीं है. कोई प्रेशर नहीं है. सॉरी. आप आपका लो. श्रेयस खेलेगा. ठीक है तो 6-7 डन. 6-7 डन हो गया. 8, 9, 10, 11 3 के लिए आई विल गो अहेड विद द अक्षर का नाम मैं पहले ले ही चुका हूँ. आई थिंक साथ में तो अक्षर आ गया. तो फिर मेरा जो 4 बॉलर रहेंगे, बट अगेन मुश्किल हो जा रहा है यार. श्रेयस भी खेल रहा है. अश्विन बुमराह तो हो गया ना. अश्विन बुमराह हो गया. बुमराह तो पक्के है. तो 2 बचे. बुमराह बचा. अक्षर ये तो कंफर्म है. ये 3 अक्षर का आपने पहले गिन लिया है. हाँ हो गया. अभी बस 2 बचे. बॉलर में आना. क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि पटीदार जो है, अगर पटीदार नहीं खेल रहा है तो फिर ये तो खेल ही रहा है हमारा. अय्यर तो खेला. पटीदार ये 2 रिप्लेसमेंट अभी होने वाले. आपको बॉलर बोलना है. आपने 2 बॉलर नहीं बोले, 2 बॉलर बोलो आप. कुलदीप. हाँ ये हो गया. अगर हम लोग 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं तो मेरा 4 बॉलर रहेगा 3+1. हाँ, और अगर कुलदीप, अक्षर और बुमराह बराबर. बुमराह अगर 3+2 गए हम लोग, और अगर हम लोग 3+2 मतलब 2 पेस बॉलर, नॉट द 4 स्पिनर एट ऑल, 2 पेस बॉलर अगर हम लोग जा रहे हैं तो आई विल गो अहेड विद द मुकेश के बेटे. हां ओके. हां फेयर. ठीक है, सही है. बट अगेन पतिदार और इसको लोग पता है कि पतिदार और सरफराज में है. अभी जहां तक मुझे पता चला है 2-3 में और लोगों से पूछ रहा था जो मतलब ग्राउंड जीरो पे हैं, दे आर सेइंग द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन, मोस्टली पतिदार के चांसेस है. सरफराज सब चाहते हैं सरफराज में, बट बोल रहे पतिदार के चांसेस. इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग because that's how India select. India always believes in the pecking order, right? Yeah. This opposition is very data driven opposition है. तो अगर हम नए लोग डाल देंगे तो they may get करुण नायर को देखो ना, अजिंक्य रहाणे गया था, ये आया 300 मारा, निकल गया, आज तक आया ही नहीं. आज तक अपनी टीम में भी कर्नाटक से भी आउट हो गया.
So अभी पटिडर 200 इधर तो मारेगा तो है। कोई आके निकल जाएगा ना उसको. नहीं फिर then ये Vallabh Shreyas बहुत or अच्छा Gill होता will है, get dropped. क्या है, चला जाएगा ना आराम से, सही है. I think it is why this game is probably career defining Uh, for Gill and Shreyas also. everyone. Because Yeah. if Kohli is back, he'll definitely No, play. our And if the Absolutely. Patidar fan scores, cricket he also stays. has fan cricket has put that, you know, Rajat Patidar's biggest enemy is Rajat Patidar. तो और कोई Patidar. चाहिए नहीं opposition. और हाँ. कोई नहीं चाहिए. तो बोला तो जिस वो दिन वो कौन अच्छा से खेलता side है, of ये the तो bed, bench पे है. हाँ. तो which side of the bed उठ गया, hopefully अच्छा रहे तो उसका लग जाए तो his career can take off. मतलब पता नहीं. देखा इससे जाए. रजत पाटीदार का ना एक देखा है डोमेस्टिक में ना, वो बिग मोमेंट्स पे वो खेलता है. रणजी फाइनल में मैंने उसको देखा था, बहुत प्रेशर में डाला था मुंबई ने, और वो बंदे ने बहुत सही बैटिंग की थी. तो वो एक फैक्टर उसका है. सेम मैच में सरफराज ने भी 100 मारा था, तो ऐसे नहीं कि वो उसमें कुछ नहीं है. बस हाँ, तो फिर दोनों ने 100 मारा था खेलो, आमने सामने. दोनों खेलो, 550 मारो, अश्विन का 10 बस. पर, ये वीडियो फिर क्लिप करके डाल देना. हाँ कर दे इसके वल्लभ, रील्स बना कर देंगे दे भाई, इसके रील्स कर बना दे. देंगे. नहीं, इस Flip वीडियो में करके हम लोग, single भी ले लेंगे, चलेगा. इस वीडियो में हमें काफी स्निपेट्स मिले. अगर वल्लभ को थोड़ा सा टाइम मिले ना विकेट्स पे, तो काफी चीजें निकाल सकता है इससे. हाँ. We got a very और टाइम भी है, देयर इज स्टिल अ डे ऑफ टू द टेस्ट. लो भाई, ये PBS वल्लभ कौन कल है? छुट्टी was ले ले. Who is this starting of the PBS session guy? में ना, starting of the session there was one like one series जिसमें और सही Saurabh पॉइंट is मार orange के जाता है ये background. बंदा. ये Yeah, बंदा बहुत अच्छा Saurabh पॉइंट is in मार के orange जाता है. background. यार वो बोल Yeah, रहे हैं Nikhil कुछ bhai is होल्ड having. कीजिए. अरे ये मेरे ऑरेंज बैकग्राउंड के पीछे लगे हुए हैं, मैं इसको कैसे चेंज करूं? दीवार है भाई. नहीं वो ऐसा आया था कि सैयद भाई भी ज्वाइन किए ना, तो आप निखिल भाई और सैयद भाई इंडिया फ्लैग जैसे आ गए थे. तो अच्छा लगा. तो ओह, देखो इतनी अच्छी बात बोल रहे हो और आप बोल रहे हो ऑरेंज के पीछे पड़ा है. अरे मंजू भाई हमारे होस्ट हैं आज के भाई. अरे भाई, जो बंदा आपका वो अपना समझ रहा है, he has to be सलाम. It is beyond a doubt. आप अगर अपना बोल रहे हो, he is able to tell the exact person. तो over hyped मंजू and भाई कुछ भी कह underrated. सकते Anyone हैं wants मेरे to take that comment? He's See, I my think fire Shreyas said player. it's. See, I'll tell I was very, very happy when Shreyas hit double 100 against Australia in the warm-up game when they came. And I really 17. felt I think we discussed this in our group also, that I felt he could be India's answer to that aggressive option. And then actually Pant came. And Pant did exactly that what we thought, okay, Shreyas will come and do. I think Shreyas has had a great, in terms of, you see, there are a lot of perception here that, as you know, Syed bhai also pointed out, कि spin बहुत बढ़िया खेलता है. But when you have that perception, there is also that expectation of you that you have to be the guy who takes the lead. I think with Shreyas, it's more to do with the confidence. I just hope this is the game where, and which is where the last decision was very disappointing. If he gets out trying to hit a 6 at long on, I will not complain, because that is his role. That is why he's in the side for. But if he gets out exactly how Gill has got out, then I feel that then you're not being true to yourself. But it's a very confidence-driven thing. So hopefully, if he gets going, we know he will not stop. So all we can do is pray, कि भाई, as for Rajat Patidar, everybody wakes up on the right side of the bed, so that everybody has a good game. And I hope that we will get a very good reasoning behind who is not playing and who is playing, because when you are taking people like Saurabh Kumar for the second time into the team and warming up bench, it's like very unfortunate for this guy, because he's 31 and we know in India. कितने आ गए No, सर. and he's supported by Bishan Bedi also. I'm talking in a The different late, way. No, Yeah. Mukesh Kumar, I read Mukesh Kumar, I think, was with the team since 2016. I don't know if I'm right or wrong. Indian team. He was with the team. I'm not saying in the squad. I'm saying he was with the team as a bowler since a long time. Or maybe it was 2019, I don't remember the exact year. But he also had to wait. अपना system में है ही ऐसा. We select in the I'm not past. talking about the net bowlers. I'm talking in last कुछ साल में जितने लोगों भी आए हैं. प्रियांक पांचाल एक बार आया. I'm just telling you. प्रियांक पांचाल एक बार आया. ईश्वरन दो बार आया. ईश्वरन आया था. ईश्वरन दो बार आया. खराब हो गया तो ईश्वरन फिर से निकलना पड़ गया, because ईश्वरन didn't, उसको कुछ तबीयत खराब था. कुछ इंजरीज इंडिया की ऐसी किस्मत पे रही, कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास मनोज तिवारी का नाम है, हमारे पास युवराज सिंह का नाम है जो 2000 में डेब्यू करने वाले थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन ही डिडंट एबल टू डू इट. मनोज तिवारी वाज सपोज्ड टू डेब्यू. रोहित शर्मा का भी तो हुआ था ऐसे. रोहित शर्मा ऐसे नहीं कर पाए. इवन रिद्धिमान साहब को फोर्सफुली खिलाया गया बिकॉज रोहित शर्मा डिडंट एबल टू प्ले समथिंग. अच्छा, तो एक लास्ट फटाफट क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी ओपन एंडेड.
Do you feel Rahul Dravid was very unlucky with the amount of injuries that he's had under his coaching tenure? Very ऊपर से discuss detail में जाने का जरूरत नहीं. नहीं If you feel so. I Because think again, except see, in this test, 2023 for World Cup, I context, think yes, he's yeah, very unlucky. Except the 2023 World Cup where everything was picture perfect. I think if you look at even the T20 World Cup, Yes. the series against South Africa, I think also it was in midst of the Virat Kohli captaincy saga. So I think the environment was also not good back then. So yeah, I think it's a very tough time to be a coach, especially But his now best chance was transition is World Cup. happening. World Yeah, Cup was now his the best chance. transition नहीं, I think Bumrah was missing from the I think World last Cup. year जब बुमराह इंजर्ड हुआ था. हाँ, बुमराह का इंजरी was one main point. वर्ल्ड कप से हार्दिक पांड्या और नाउ टेस्ट सीरीज से जडेजा. ये तीन प्लेयर्स ऐसे हैं that we consider them as the untouchables in the respective formats. तो हाँ, ऋषभ पंत का तो यार मेजर, बहुत मेजर. तो मतलब ये आई थिंक 4 नंबर प्लेयर्स को काउंट करते तो हाँ अनलकी तो है. मतलब ये तो जब द्रविड़ आया तब से इंजरीज हो रहे हैं क्या? ये अभी अलग टेंजेंट पे लेके गया होस्ट, पर मैं उसके बारे में चलो ठीक है, ओके. अनलकी रहे. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम. मंजू भाई इज द होस्ट. अरे उसमें क्या it was a great session actually. First time we got Debasis Sen, and he usually doesn't attend these sessions, so that's a very good thing. So he also enjoyed. We had a photojournalist for the first time. We could ask some questions. So further, there is a possibility. And he promised me that he will be joining us soon. Yeah. Even Syed also. And so I think his favorite photo is of Ollie Pope getting out. So I think that photo will be repeated twice, and the match will be. But please tell the score. I don't care about the repetition. 500 पे नहीं. 500 पे वो फोटो नहीं चाहिए. 500 पे नहीं. Ollie Pope 10 and 12 in his respective. Ollie Pope needs lollipop. Thank you. Sourabh sir. अरे जीरो वाला लॉलीपॉप भाई, वो कोल वाला. अगर वो एक पकड़ के 2 लॉलीपॉप ले लेगा तो किधर जाएंगे? हाँ वही तो. नहीं चलो हमारा कन्वर्सेशन और चल रहा है. Let's go ahead and हाँ बोलो. नहीं अगर सौरभ भाई अभी ऑनर बोल रहा है, कुछ तो सुनना पड़ेगा. विकेट्स पे है, वो बोलेगा Ollie Pope needs lollipop, then the bowler will bowl a lollipop. बताओ. This is actually, sorry people, this is not live, this is BTS, but unfortunately it's live. Sorry. And another thing is like इसके लिए माफी चाहते हैं. Looks नहीं, Ollie Pope resembles Ian Bell. So धोनी ने वो रन आउट से बेल को बुलाया था वापस. तो हम लोग पोप को नहीं बुलाएंगे. रात को 1:30 बजे यार दिमाग इतना चल कैसे रहा है? ऐसे नहीं बोलेगा सर. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नया रूल सीखना है अपने को. एक्चुअली रात एक टेस्ट हो गया, अपन ने एक नया रूल नहीं सीखा, इस टेस्ट में सीखेंगे. चलो सीखेंगे. चलो टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट. लास्ट का 20 मिनट मत देखना. बाय.